कि इनकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों? દરેક એમએફડી ને એમ લાગતું હોય કે મારા કરતા બીજાના સોફ્ટવેરમાં સારા રિપોર્ટ મળતા હશે, કેવા મળતા હશે, શું હશે. પણ એની સામે આપણે એટલો બધો સમય પણ એકબીજાની પાસે ના હોય કે એકબીજાના સોફ્ટવેરમાં આપણે જોઈએ કે કામ થાય છે અને કેવી રીતે થાય છે. તો આજે ફરીથી એક વખત આપણી વચ્ચે ફિનટેક ફંડ એક્સપર્ટ તરફથી શ્રી અનુરાગ સાબુજી એ આપણી વચ્ચે આવે છે કે જેઓ તેમની સોફ્ટવેરની જે બધી સ્થિતિ છે આપણને સમજાવશે. અને ફરીથી એક વખત આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. અને રાજેશભાઈ દેવળિયા એમએફડી રાજકોટને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ ઓફિશિયલી વેલકમ સ્પીચ આપશે. શ્રી રાજેશભાઈ દેવળિયા. રાજેશભાઈ, ઓવર ટુ યુ. Hello. રાજેશભાઈ, બરાબર છે. Yes, good evening, friends. આજે જેમ જયેશભાઈ કીધું એમ કે ભાઈ લોકો કંઈક ને કંઈક રોજ ને રોજ નવું આવતું રહેતું હોય છે. અને ટેકનોલોજીની વાત કરીએ તો ટેકનોલોજીમાં તો જેટલા જેને કહે ને કે ચેન્જીસ, અનબિલીવેબલ ચેન્જીસ, નવા આઈડિયાઝ અને નવા ઇનોવેટિવ થિંગ્સ આવતા રહેતા હોય છે. તો નેચરલી આપણી જે એમએફડી કોમ્યુનિટી છે એને પણ એક માર્કેટના લેવલે અથવા તો માર્કેટની સાથે કોમ્પિટિશનમાં ટકવા અથવા તો આપણા કસ્ટમરને કંઈક નવું આપવા માટે પણ સતત તૈયાર રહેતું હોય અથવા તો રહેવું જોઈએ. તો અને એના માટે સ્કીફા કંઈક ને કંઈક જે બી નવા ઇનોવેટિવ્સ કે નવી કોઈ કંપની, નવી કોઈ ટેકનોલોજી લઈને આવે સોફ્ટવેર, તો એના માટે સ્કીફા કમિટી હંમેશા તૈયાર રહે છે. તો એવું જ એક સરસ આયોજન કર્યું છે કે ફંડ એક્સપર્ટ ફિનટેક જે છે એમની સાથે કોલોબરેટ કરીને. તો હું આજે વેલકમ કરું છું મિસ્ટર અનુરાગ સાબુને કે જેઓ કો ફાઉન્ડર અને ડિરેક્ટર છે ફંટેક એક્સપર્ટના. સાથે સાથે ચેતનભાઈ નંદાની સ્કીફા પ્રેસિડેન્ટને વેલકમ કરું છું. I welcome Skifa President Mr. Chetan Nandani. Also, I welcome Vice President Jayesh Bhai Patani as well as Secretary Mr. Anand Jinjwadia and Mr. Jayesh Guwani, who is Joint Secretary of Skifa, as well as the most important all Skifa member. કે બધા આજે એકચ્યુઅલી રજાનો દિવસ, આમ તો શનિવાર આરામનો દિવસ હોય અને સંક્રાંત પછીનો, એના બદલે બધા લોકો જોઈન થયા છે. તો I welcome every member of Skifa. Thank you. Over to you, Jayesh Bhai. રાજેશભાઈ, ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો. હવે હું આપણા સેક્રેટરી એવા શ્રી આનંદભાઈ જીંજવાડિયાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આજના જે સ્પીકર છે એ અનુરાગ સાબુ અને તેમની કંપની ફંડ એક્સપર્ટ વિશે આપણને ટૂંકો પરિચય આપશે. ઓવર ટુ યુ આનંદભાઈ. ગુડ ઇવનિંગ. થેન્ક યુ જયેશભાઈ. અવાજ આવી રહ્યો છે બરાબર? હા, આવે છે, અવાજ આવે છે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણા બધા માટે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ટૂલ હોય છે આપણું જે સોફ્ટવેર, આપણે જે ટેકનોલોજી યુઝ કરીએ છીએ, આપણા બધા માટે એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટૂલ છે. અને આપણા બિઝનેસમાં આપણી ડિજિટલ પ્રેઝન્સને, આપણી ડિજિટલ સર્વિસ સારી રીતે રિપ્રેઝેન્ટ કરવા માટે આપણી પાસે એક પ્રોપર ટૂલ હોવું એ દરેક એમએફડી માટે બિઝનેસના પાર્ટ રૂપે જરૂરી છે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ઘણા બધા સોફ્ટવેર યુઝ કરતા હોઈએ છીએ અને ઘણી બધી કંપનીઓ સાથે આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક કનેક્ટેડ હશે. ફંડ્સ એક્સપર્ટ છે એ એક ફિનટેક કંપની છે જે નાના એમએફડીઝ, જે નાના સ્કેલ ઉપરથી શરૂ કરીને મોટા એમએફડીઝ છે એને સપોર્ટ કરવા માટે એક કંપની કામ કરી રહી છે. અત્યારે 1400+ એમના એક્ટિવ યુઝર્સ છે જે પાન ઇન્ડિયા એમના સોફ્ટવેર્સને અને એમના ટૂલ્સને યુઝ કરે છે. અનુરાગજીની વાત કરું તો અનુરાગ સાબુ સર 25 વર્ષ પ્લસના ટાઈમ્સથી આપણા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસના ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સાથે જોડાયેલા છે. હી ઇઝ કો ફાઉન્ડર એન્ડ ડાયરેક્ટર ઓફ ધી કંપની ફંડ્સ એક્સપર્ટ ફિનટેક. સો એમનાથી જ આપણે વધારે શીખીએ, જાણીએ કે એમની ટૂલ અથવા એમની જે પ્રોડક્ટ છે એમાં શું નવું ઇનોવેટિવ છે જે આપણી બિઝનેસને એક નવા સ્કેલ સુધી લઈ જઈ શકે. I would like to request Mr. Anuragji to present your product and share us the details. And I would like to welcome you all Skifa members also. Over to you, Jayesh bhai. Thank you very much. And over to you, Anurag ji. अब आप और हमारे सब एमएफडीज.
Thank you, Jayesh bhai. Thank you, Skipper President and Secretary Chetan ji and Anand ji respectively. And thank you everyone for all the kind words. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. अभी मैं आपके सामने, मेरा नाम अनुराग साबू है और मैं आपके सामने फंड एक्सपर्ट फिनटेक का प्रोडक्ट जो है, सॉफ्टवेयर है जो आप यूज कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा. मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ. पहले मैं आपके सामने पूरा प्रेजेंटेशन करूंगा और फिर एंड में आपसे क्वेश्चन आंसर्स जो आपके रहेंगे उसका आंसर करूंगा. तो मैं अपना स्क्रीन अब शेयर कर रहा हूँ. आपको एक ब्रीफली ले जाता हूँ. होपफुली आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी और बराबर दिखती है. और क्लियर दिखती है. अगर कहीं कुछ आवाज में कुछ दिक्कत आई या कुछ आए तो आप जरूर बताइएगा, मैं उसको ध्यान दूंगा. थैंक यू सो मच. अब वेलकम टू द स्पेशल वेबिनार. प्रेजेंटेशन इंग्लिश में बना हुआ है लेकिन मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तो आई एम श्योर कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगी. अगर कुछ भी रहा तो मैं क्वेश्चन आंसर में कवर कर लूंगा, अगर कोई पॉइंट छूट गया या मिस हो गया. तो गुड आफ्टरनून एवरीवन. तो मेरा नाम अनुराग साबू है. मैं डायरेक्टर और को-फाउंडर ऑफ फंड एक्सपर्ट फिनटेक का. मैं आईआईटी मद्रास से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ. आई एम बैंगलोर से पास आउट हूँ. 25 साल मैंने इस इंडस्ट्री में काम किया है, बहुत सारे फाइनेंस सेक्टर में काम किया और मैंने बहुत सारी फाइनेंस की डिग्री ली है, जैसे मैं सीएमटी हूँ, सीएफपी हूँ, सीएफटी हूँ, कई तरह के. और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो जो भी एनआईएसएम की सर्टिफिकेशन या डिग्रीज हैं जो जरूरत होती है इस प्रोफेशन को करने के लिए सक्सेसफुली, वो सारी मेरे पास अवेलेबल है. तो बेसिकली मेरा ये फाइनेंस के प्रति बहुत रुचि था शुरू से. मैं इवन तो आईआईटी से पास आउट हुआ लेकिन मैं आईएम में गया और फाइनेंस और इसमें ग्रेजुएट हुआ. पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने कई सारे फाइनेंस किए. तो इन सारी नॉलेज और ये सब करते हुए हमने ऑलमोस्ट एक दशक पहले, 10 साल पहले गमशन लैब्स करके एक सॉफ्टवेयर कंपनी स्टैब्लिश की है जो आज भी सक्सेसफुली चल रही है, जो लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है. एंटरप्राइज डिजिटल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म फॉर लार्ज गाइस. तो उसमें कई सारे, उसके लिए हमने बहुत सारे अवार्ड जीते. बार्कलेज, विलेज कैपिटल, थॉमसन रॉयटर्स, ये सब बड़े बड़े नाम हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज को सर्व करते हैं, थॉमसन रॉयटर्स और ये. तो उनके कारण हमें काफी रिकॉग्निशन मिली और हमारे प्रोडक्ट आज इंडिया के सबसे टॉप फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म में यूज होते हैं, जैसे बजाज फिनसर्व, एडलवाइस, कोटक वेल्थ, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन. ये सारे हमारे सॉफ्टवेयर जो डिजिटल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है उसके कस्टमर्स. तो इसी दौरान जब हम ये बना रहे थे तो नेचुरली हमने बहुत सारे इंटीग्रेशन किए बहुत सारे प्लेटफॉर्म से. बीएससी स्टार एमएफ से भी हमारा इंटीग्रेशन हुआ सॉफ्टवेयर सबका. उनके दौरान हमारी मीटिंग हुई. मैं नेशनल फिनटेक विकी कमेटी का मेंबर हूँ. तो फिनटेक 2019 ये हुआ था, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 3 साल पहले, जब प्री कोविड एरिया, जब फिजिकल वर्कशॉप्स और ये सब बहुत कॉमन होते थे, ऑनलाइन चीजें कम होती, तो ये फिजिकल दुनिया में ये हुआ था इवेंट. मैं फिनटेक कमेटी का पार्ट भी हूँ, तो इसलिए वहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन हुआ. इस 3 साल पहले मेरी मुलाकात भी जो बीएससी स्टार के हेड है, उन्होंने फिर सजेस्ट किया कि आप ये जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ये स्मॉल और मीडियम एडवाइजर्स के लिए बनाइए, क्योंकि उन लोगों को बहुत सारी इसकी रिक्वायरमेंट और जरूरत है. उन्होंने समझाया ऐसा. तो फिर उसके ऊपर फिर हमने काम किया, सोचा और फिर हमने पता किया, फिर हमने देखा बहुत सारे रियल इश्यूज थे, रियल प्रॉब्लम थे जो एक एडवाइजर के पास थे. एक फाइनेंशियल एडवाइजर जो आज सबसे अच्छी बात फाइनेंशियल एडवाइजर थी, वो रियल इंडिया से कनेक्टेड है, रियल कस्टमर्स हैं, डे टू डे हैंडल करते हैं, अपना पर्सनल टच लाते हैं. लेकिन उनकी दिक्कत ये हो रही थी कि उनके पास अपना डिजिटल आइडेंटिटी नहीं था. क्योंकि मैंने देखा कि डिजिटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हो या फाइनेंस सर्विस इंडस्ट्री हो, उसकी ग्रोथ रेट लास्ट 5 इयर्स में 20%, 25% पर एनम सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट में से एक रही है लास्ट डिकेड में. लेकिन और लास्ट 5-6 इयर्स में तो एकदम जूम हो गया. लेकिन फिर भी ये जो फाइनेंशियल एडवाइजरी का बिजनेस है, स्मॉल एडवाइजर्स के लिए उतना जूम नहीं हो रहा है. इसका फायदा न्यू रोबो एडवाइजर या न्यू फिनटेक एडवाइजर्स ये लोग ज्यादा उठा रहे थे. तो फिर हमने देखा दोनों में जो डिफरेंस क्या है. जो ये लोग वेल स्टैब्लिश्ड हैं, कस्टमर्स के साथ आप लोग सब हैं, फिर ऐसा क्या हो रहा है. तो फिर हमने रियलाइज किया वही है कि एक अपनी डिजिटल आइडेंटिटी नहीं होने के कारण आप कस्टमर को एक्वायर बहुत कम कॉस्ट में नहीं करते हो. बहुत कॉस्टली होता है एक कस्टमर को एक्वायर करना, फिर उनका ऑपरेशन कॉस्ट, उनका मेंटेनेंस कॉस्ट, फिर जो भी सॉफ्टवेयर आप लोग यूज करते हो वो काइंड ऑफ बैक ऑफिस है, तो आपको डिजिटल आइडेंटिटी नहीं देते. तो बहुत सारी चीजें आप अपने क्रॉस सेलिंग और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस करते हो, जो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो बड़ी कंपनीज कर रही थी, जो इन्होंने इतना एक्सपैंड किया, अपना यूजर बेस एक्सपैंड कर रही थी रैपिडली,
और बहुत सारी दूसरी प्रोडक्ट और सर्विसेज लॉन्च कर रही थी और ग्रो कर रही थी, लेकिन ये चीजें स्मॉल और मीडियम एडवाइजर से नहीं हो रही थी। ये प्रॉब्लम था उनके पास। तो हमने समझ लिया और इसके लिए फिर हमने ये कंपनी बनाई और लॉन्च किया फंड एक्सपर्ट फिनटेक से, जो स्मॉल और मीडियम एडवाइजर्स के लिए काम करती है। तो हमारा यहाँ पर्पस ही, हमारा मिशन ही है कि स्मॉल और मीडियम वेल्थ एडवाइजर के साथ काम करना, उनके क्लाइंट्स को हेल्प करना बेटर और उनको ग्रो करना और उनको लार्ज बनाना हमारे ऑटोमेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो इसके लिए ये सॉल्यूशन बना जिसका नाम है फंड एक्सपर्ट। ये एक ऑटोमेटेड डिजिटल मल्टी एसेट वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। इसमें एक एडवाइजर जब ये फंड एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म यूज करता है तो उसकी अपनी डिजिटल आइडेंटिटी बनती है, ऑनलाइन डिजिटल आइडेंटिटी बनती है, जिससे वो अपने कस्टमर को ये डेटा या जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं उनकी रियल टाइम एक्सेस क्रिएट कर सकता है। तो आज एक कोई भी कस्टमर के पास अगर आप जाते हो और आप बोलते हो कि मेरा ये ऐप डाउनलोड करो जिसका नाम है XYZ FinServ, ये ऐप डाउनलोड करो, तो सामने वाला लगता है कि वाह आप एक प्रोफेशनल कंपनी है, आपके पास अपना ऐप है, अपना डिजिटल आई वेब है। तो उनको भी आपका एक वो जो आज की क्लाइंट लोग की एक थॉट प्रोसेस है उसके हिसाब से आप उस लेवल में आते हो, तो आप दूसरे कंपटीशन से कर सकते हो, फाइट कर सकते हो, जो भी वैसे ही डिजिटल आइडेंटिटी लेके आ रहा है। तो जब आप ऐसी ऑनलाइन डिजिटल आइडेंटिटी हम बना के देते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एडवाइजर की अपनी, और जब ये एडवाइजर अपनी आइडेंटिटी उसको देता है और उससे वो कस्टमर को रियल टाइम एक्सेस और डेटा मिलता है, और जब वो कस्टमर अपना काफी सारे इंफॉर्मेशन और सब कुछ अपने से मैनेज कर सकता है, तो उसका सेकेंड एडवांटेज ये होता है कि जो MFD है उसकी बहुत सारी चीजें ऑटोमेट हो जाती है, मैनेजिंग, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, ये सब सीमलेस हो जाती है, ईजी हो जाती है। तो फिर वो अपने अपने बिजनेस और अपने कस्टमर बेस को एक्सपैंड करने में, अपनी स्केल करने के लिए ग्रो कर सकता है, क्योंकि यही प्लेटफॉर्म उसको बहुत सारे दूसरे और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देता है जो आज के टाइम पर नीडेड है आपकी सर्विस और आपका बिजनेस को ग्रो करना। क्योंकि अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म में चल जाइए, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सेमिनार्स में चल जाइए और किसी से पूछिए कि व्हाट आर द 10 थिंग्स एन IFA हैज टू डू और म्यूचुअल फंड एडवाइजर हैज टू डू, या टॉप 3 थिंग्स, तो वो बोलेगा स्केल योर बिजनेस, गेट योर मोर वैलिड शेयर ऑफ द कस्टमर, ये सब टर्मिनोलॉजी बोलेगा। कि बोलेगा बेसिकली कस्टमर को आप और सर्विसेज दो और दो, क्योंकि आपकी म्यूचुअल फंड की सर्विसेज की जो आपकी इनकम है वो ओवर अ पीरियड कम ही हो रही है, क्योंकि रेगुलेशन के कारण और दूसरे कारण। तो आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करो और प्रोडक्ट सर्विस लो। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज या डिसएडवांटेज आप जब दूसरे प्रोडक्ट सर्विस लाते हैं, उसके साथ उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, सर्विसिंग और बहुत सारे ऐड हो जाते हैं, जो एक स्मॉल एडवाइजर के अपने स्केल के कारण, क्योंकि छोटी टीम होती है और छोटे सिस्टम होता है, तो वो स्केल करना मुश्किल होता है। तो हमने इसी ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसके अंदर ये सारे इनबिल्ट हैं, तो अपने आप ही वो सारे प्रोडक्ट सर्विसेज कस्टमर वापर सकता है, यूज कर सकता है, और आपके बिजनेस ग्रोथ हो सकता है, आपका बिजनेस ग्रोथ स्केल हो सकता है। तो ये हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया और हमने इसको ऐसा बनाया कि ये, हम कहते हैं कि ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हमारा पर्पस शुरू से था कि जो भी कॉस्ट आप इस प्लेटफॉर्म के लिए यूज करने के लिए देंगे, क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करेंगे तो उसका कॉस्ट होगा, और कोई भी सॉफ्टवेयर जो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो, इतनी सारी चीज करता हो, उसका कॉस्ट और मेंटेनेंस भी वैसे ही होगा, जरूर है। लेकिन अगर आप इसी प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, तो हमने ऐसा सिस्टम या डिजाइन किया कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए वर्चुअली जीरो कॉस्ट हो जाता है ओवर अ पीरियड। कैसे होता है वो हम बताएंगे, लेकिन ये एक्चुअली ऑलरेडी हो रहा है, और तो इसलिए ये अफोर्डेबल हो जाता है। नहीं तो ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना और मेंटेन करना स्मॉल एडवाइजर्स के अनअफोर्डेबल होगा, सिर्फ लार्ज और मीडियम एकदम एक्सट्रीमली इंस्टीट्यूशनल एडवाइजर ही यूज कर पाएंगे। लेकिन ये पॉसिबल था, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा मॉडल हमने बनाया, और ये काफी, इस मॉडल के कारण आज क्या हो रहा है, एडवाइजरी एक स्केल हो रही है लोगों की, बिजनेस ग्रो हो रहा है, सेटिस्फाइड यूजर्स हैं, और इनकम जनरेशन बढ़ गया है, कई गुना हो गया है। और इसके सारे, इसीलिए हम कहते हैं ये स्टोरी हमारी ऐसी है कि हम बोलते हैं ये आपका टच है और हमारा टेक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, योर टच एंड आवर टेक, और इनको कंबाइन करके ये हो रहा है आज। और हमको ये आज, ये पहले 1 साल पहले जब हमने लॉन्च, 1.5 साल हो गया एक्चुअली, 1.5 साल पहले जब हमने लॉन्च किया था, तो BSE स्टार ने इसका बहुत वेबिनार किया था, बहुत सारे लोगों को भेजा था, क्योंकि उनके ही पार्टनर, उनके ही आइडिया से ये जनरेट हुआ था इसमें। तो उस समय लोग क्वेश्चन करते थे, तो उनको विश्वास नहीं होता था ऐसा कुछ हो भी सकता है। लेकिन आज ये हो चुका है। आज 1400 के ऊपर फंड एक्सपर्ट के प्लेटफॉर्म के IFA यूज करते हैं ऑल ओवर इंडिया, 1.5 साल के अंदर, और रोज नए IFA यूज करते हैं, और वो खुद इसको इतना पसंद कर रहे हैं कि आज उन्होंने इसको इंडिया का मोस्ट फेवरेट MFD प्लेटफॉर्म बना दिया है। देखिए, जो भी ये स्क्रीन में मैं नाम दिखा रहा हूँ, ये सब नाम आप ऑलरेडी जानते हैं, ये सब नाम आप, मैंने पहली बार नहीं ले रहा हूँ।
ये सब नाम आपके ऑलरेडी नोन सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स या नोन थे, इंडस्ट्री में सालों से हैं, वर्षों से हैं। लेकिन आप इनकी रेटिंग और इनके रिव्यूज पढ़ लीजिए और हमारी रेटिंग और हमारी रिव्यूज पढ़ लीजिए, तो आपको अपने आप डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा क्या कर रहा है जो इतना रिवोल्यूशनरी है, या इस तरह से कर रहा है कि इन सबसे इतना बेटर क्यों हुआ। तो ये हमारी गूगल रेटिंग है, हाईएस्ट है, मोस्ट फेवरेट है, और हम इसको और इसके कारण भी है, और इसके कारण है कि वो सक्सेस स्टोरीज जो आज हो चुकी है, लोग ने हमको रिव्यूज क्यों दिए, क्योंकि उनकी सक्सेस ऐसी स्टोरी हुई है कि वो खुद ही अपने से आके स्टोरी बताते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर या गूगल रिव्यूज में। जैसे ये मैं आपको एक 3-4 स्टोरी दिखा रहा हूँ, बाकी सारी गूगल पर अवेलेबल है, आपको देख सकते हैं। ये दिनेश सिंह जी हैं, ये कानपुर से हैं। इन्होंने अपना हमारा ऐप यूज़ करना स्टार्ट किया ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले। आज उन्होंने 6 महीने के अंदर उनका एयूएम इस ऐप को यूज़ करने से 4 टाइम्स हो गया। ऐप और बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर उन्हें खुद लिखते हैं कि ऐप और बैक ऑफिस नहीं होता तो मैं ऐसा कर ही नहीं सकता था। मैं बहुत इंडिपेंडेंट और नया एमएफडी था, लेकिन मैंने अपना स्केल इतना बढ़ा लिया और सपोर्ट बहुत ऑसम है, न्यू फीचर्स आए हैं और मेरा बहुत कुछ डेवलपमेंट और सॉल्यूशन हुआ, मेरा बिज़नेस ग्रो हुआ है। ये थे नॉर्थ इंडिया से, कानपुर से। ऐसे ही हैं ये हैं गुजरात से, मूर्ति इन्वेस्टमेंट है, इनका नाम राकेश जी है। आप देख सकते हैं, तो इन्होंने भी सॉफ्टवेयर यूज़ किया। ये आज भी यूज़ करते हैं। इनका वेब और ऐप दोनों फंड एक्सपर्ट से चलता है। इनका जो पहले सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर था उससे बहुत हैप्पी नहीं थे और उनके साथ बहुत सारी दिक्कत थी, तो वो आए। अब उन्होंने यहाँ पर देखा नॉट ओनली सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, उनका एक्सपीरियंस बहुत है और फीडबैक हम ले रहे हैं और इतने सारे दूसरे नए इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट सर्विसेज इसके अंदर है, तो इससे उनका बिजनेस बहुत ग्रो हुआ है। इसलिए उन्होंने, और प्लस हमारे सपोर्ट की भी उन्होंने बहुत तारीफ की। तो ऐसे ही है। ऐसे ही ये ईस्ट इंडिया की स्टोरी है। ये शिवानंद साहा है, उड़ीसा से हैं, एक छोटे से रूरल एरिया से हैं। इनका जब ये आए थे हमारे पास ऑलमोस्ट 1 साल पहले, तब इनका इश्यू ये था कि उनके एरिया में लोग ज़्यादा स्टॉक मार्केट करते थे, म्यूचुअल फंड कम करते थे और ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा थे। तो हमारे प्लेटफ़ॉर्म में ऐसा था कि ब्रोकरेज, डीमैट ये सब सर्विसेज़ भी अवेलेबल है, जो आईएफए चूज़ कर सकता है अगर उसको उसको चाहिए वो सर्विसेज़ भी। और सबसे अच्छी बात है कि ये सारी सर्विसेज़ जो एक्स्ट्रा जो प्लेटफ़ॉर्म में रहती हैं, इन सब पर उनको इसको पे आउट मिलता है। तो उन्होंने स्टार्ट किया अपने ब्रोकरेज, अपने ट्रेडिंग कस्टमर्स को यहाँ लाने के लिए, और जैसे-जैसे लाते गए इनकी इनकम दिन दुगनी बढ़ती गई। फर्स्ट मंथ में कुछ था, सेकंड में ₹5000 मंथली ब्रोकरेज इनकम बनने लगी, थर्ड मंथ में 10,000 पहुँच गई। ऐसे इनकी इनकम जंप होती गई। आज इनका मंथली इनकम कुछ महीने पहले तक तो मैं खुद देख रहा था, वो ₹10,000 मंथली सिर्फ ब्रोकरेज शेयर से इनकी इनकम बन रही थी, जो कि ओवर एंड अबव थी उनकी म्यूचुअल फंड के इनकम के ऊपर। तो ये था एक केस स्टडी ईस्ट इंडिया का। ऐसे ही फिर साउथ के भी बहुत सारे केस स्टडीज़ हैं और बेसिकली आप देख सकते हैं ये मोरा फिनसर्व है, एक कंपनी। इन्होंने ये बहुत साल से इस बिज़नेस में है। इन्होंने लिखा भी कि आई हैव नेवर सीन इन 10 इयर्स ऑफ माय जर्नी किसी ऐप और किसी टीम ने इतना एफर्ट लिया एक फाइनेंशियल एडवाइजर के बिज़नेस के लिए। तो ये वो लोग पर्सनली यूज़ करते हैं, खुद पर्सनली फ़ील करते हैं ये उनके बिज़नेस और इस सब के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और ऐसे ही हैं संदीप कुलवाड़ी जी, जिन्होंने लिखा कि बेस्ट ऐप एवर। हार्दिक अरोड़ा जी, जो उन्होंने कुछ दूसरा प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करा था, हैप्पी नहीं थे, फिर यहाँ आए और आज यहाँ यूज़ कर रहे हैं और बहुत-बहुत हैप्पी हैं और जिस तरह से वो बिज़नेस कर रहे हैं। ऐसे ही कई तरह के हैं, नॉर्थ से, साउथ से, केरला से, जम्मू कश्मीर से। आज इंडिया का हर कॉर्नर से कोई ना कोई आईएफए रोज़ जुड़ता है और करता है। इसके अलावा भी बहुत सारी है, तो मैं 300 के ऊपर स्टोरी है। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं, आप गूगल में जाइए, हम लोग का ऐप का पेज खोलिए, फंड एक्सपर्ट ऐप, ऊपर सर्च कीजिए। अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, उसमें फंड एक्सपर्ट ऐप पे जाइए और नीचे जाएँगे स्टोरी बढ़ जाएगी। ये कल की है, देखिए 12 जनवरी, आज 15 है, 3 दिन पहले मिहिर भावे जी ने लिखा, बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द एमएफडीज। आई हैव नॉट सीन टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर विद सच एक्सप्लिसिट एंड क्लीन प्लेटफॉर्म व्हिच इज ईजी टू यूज। यू डन फैबुलस जॉब। हाँ, कुछ इम्प्रूवमेंट अभी भी स्कोप रहता है जो है, लेकिन हम श्योर हैं जिस तरह से कंटीन्यूअस अपग्रेड हमारी टेक टीम करती है, और ये आप किसी से भी पूछ सकते हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म जुड़ा है, हमारा ऐप दिन दुने रात चौगुनी डेवलपमेंट और अपग्रेड में लगा रहता है। तो उसके लिए वो हम श्योर हैं कि ये भी कवर हो जाएगा। ऐसे ही और लोगों ने लिखा है, जिग्नेश पटेल जी ने लिखा है, ग्रेट गोइंग, थैंक्स टू टीम स्पेशली फॉर दिस प्लेटफॉर्म। आई एम श्योर ये ऐसा ही हमारा टेन्योर रहेगा और मोर एक्साइटिंग फीचर्स मिलेंगे, और ये हमारे हमेशा कोशिश रहती है कि आपको हर बार, हर कुछ दिन में कुछ ऐसा यूनिक और कुछ ऐसा नया मिले जो आपने कभी नहीं देखा होगा, कहीं नहीं सुना होगा। और ये हर जगह से लोग सुनते हैं, देखते हैं। ये सब तो अभी हाल के रिव्यूज थे और मैंने आपको पहले भी दिखाया। अब मैं आपको वो प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ जो इतनी तारीफ के लोगों ने काबिल समझा, तो कोई कारण होगा। उस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको लेके जाता हूँ। तो उस प्लेटफॉर्म को मैंने 2 पार्ट में प्रेजेंटेशन डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में मैं कवर करने जा रहा हूँ आपके वेब का,
तो वेब का मैं और फिर मैं बाद में वही चीज दिखाऊंगा कि ऐप में भी आप कर सकते हो। तो ये वेब और ऐप दोनों जगह अवेलेबल है। इसका फ्रंट और बैकएंड दोनों है। आपको जो पोर्शन जोड़ना है, और ये आपकी एग्जिस्टिंग वेबसाइट से लिंक हो जाता है, ये आपकी एग्जिस्टिंग इससे लिंक हो जाता है, क्या बोलते हैं, आपकी अगर एग्जिस्टिंग वेबसाइट है तो उससे लिंक हो जाता है। अगर आपकी नई वेबसाइट नहीं है तो ये वेबसाइट बना के भी एक दे देता है। तो इस तरह से एक प्लेटफॉर्म है जो कंप्लीटली आपको इंश्योर करता है कि आप डिजिटल हो ही जाएंगे। अगर आप अभी भी नहीं है तो 100% आप फुली डिजिटल हो जाएंगे। और ये इसके साथ जो सपोर्ट टीम रहती है वो इंश्योर करती है कि अगर आपने डिजिटल लाइफ में यूज नहीं भी किया होगा कभी, तो भी आपको ऑनबोर्ड करके ट्रेन करके आपको उस लायक बना देगी कि आप भी इसके ऊपर उतना ही इजी काम कर पाएंगे जैसे ये लोग सब कर रहे हैं, जो पूरी इंडिया के हर कॉर्नर और हर एरिया से कर रहे हैं। और उसके लिए हमने इंश्योर कि हमारा सपोर्ट सिस्टम भी बहुत यूनिक है, वो भी हम एंड में बताएंगे। तो बेसिकली अगर आप देखें, ये demo.fundexpert.net है, मैं एक सैंपल है, लेकिन ऐसी ही कई सारी वेबसाइट और कई सारे हैं व्हाइट लेबल वेबसाइट्स, और सबसे लिंक हो जाता है, कैसे भी हो जाता है। ये हम एक सैंपल डेमो दिखा रहे हैं, जो बेसिकली जिसका रूप और रंग या तरीका जैसे भी वेबसाइट जिसकी भी हो वैसे चेंज हो जाता है। तो ये जैसे demo.fundexpert.net है, अगर अब इसमें आप देखेंगे तो एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट बनी हुई है जिसमें स्टैंडर्ड सारी इन्फॉर्मेशन है, आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, और ये आप वेब और ऐप दोनों जगह यूज कर सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर लॉग इन किए अपने demo.ifA@fundexpert.in में, मैं एक डेमो लॉगिन क्रेडेंशियल से लॉगिन कर रहा हूँ, ताकि आप एक लाइव दिखा सको कि जब आप ऐसे लॉगिन करते हैं तो आप इसके अंदर आपको क्या फीचर्स और क्या सर्विसेज इसके अंदर मिलती है। तो जैसे आपने लॉगिन किया तो पहले तो ये आपका प्लेटफॉर्म जो IFA है ये उसका लॉगिन हो गया। IFA जब लॉगिन करता है तो ऑब्वियसली उसको पहले दिखेगा अपने क्लाइंट की लिस्ट, उसके नीचे के एक्स्ट्रा एडवाइजर्स, अगर उसके नीचे और एडवाइजर्स उसने वो वाला मॉड्यूल लिया हुआ है जिसमें एडवाइजर्स ऐड किए हुए हैं या सब ब्रोकर या जो भी, और उसके बाद दिखेगा म्यूचुअल फंड और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स से रिलेटेड जो जो कॉन्फ़िगरेशन वो करके रख सकता है। जैसे एग्जांपल है, कुछ चीजें वो रिसर्च के लिए यूज हो सकता है, जैसे फंड स्क्रीनर है, तो मैं दिखाऊंगा जैसे अगर कोई फंड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो फंड स्क्रीनर से आके सर्च कर सकता है। जैसे कोई पर्टिकुलर फंड का नाम ले ले, कोई पर्टिकुलर कैटेगरी का, कोई पर्टिकुलर सब कैटेगरी का, ऑप्शन टाइप का वो चूज कर ले तो उसका डेटा यहाँ आने लग जाए। अगर उसको कोई पर्टिकुलर फंड ऐसे सर्च करना तो ऐसे सर्च भी कर सकता है, और जैसे उसने सर्च किया ये आ जाए। तो जैसे आप जानते हैं चूंकि वो MFDs है तो आपको सिर्फ रेगुलर फंड्स यहाँ पर मिलेंगे, रेगुलर फंड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी। ऑब्वियसली ये सारे रिटर्न्स, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, AUM साइज, एक्सपेंस रेशियो, और उसका परफॉर्मेंस कर्व, और उसके अलावा उसके फंड हाउस के शीट्स, स्कीम शीट और फंड फैक्ट शीट, जो कि आप अगर आप क्लिक करोगे तो उसका खुल जाएगा, और ये आपको मॉर्निंग से पूरा डिटेल्ड फैक्ट शीट निकाल के देगा, जो आप डाउनलोड भी कर सकते हो और फिर आप अपने कस्टमर को भी शेयर कर सकते हो कि अगर उसको चाहिए तो ये फैक्ट शीट शेयर कर ले, और उसको इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन और सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए है बेसिकली इस फंड हाउस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ भी। ठीक है, तो जैसे ये आ गई फैक्ट शीट, अब ये फैक्ट शीट आप इसमें स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, मैं बीच में कोई भी क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ कि मैं एंड में सारे क्वेश्चन लूंगा, इसलिए आप अपने सारे क्वेश्चन एंड में रखिए और मैं आपके सारे क्वेश्चन एंड में सारे कवर करूँ, ताकि सबको एक साथ एक ही फ्लो में इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए। तो आप देख रहे हैं जैसे इसमें अगर मैं जूम करके भी आप देख सकते हैं कि जैसे अगर मैं यहाँ पर जूम कर दो 100%, तो आप देख सकते हो जैसे टॉप होल्डिंग, सेक्टर वेटिंग, कंपनीज, एक्सपेंस लोड, ये वो आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिल जाएंगी जो आपको चाहिए अगर किसी को, ये आप डाउनलोड करके भी उसको भेज सकते हैं। तो ये हो गया आपका फंड या उससे फैक्ट शीट से रिलेटेड। फिर बेंचमार्क, फिर सिमिलर फंड जो इसके बराबर के हैं टॉप में, वो आते हैं लिस्ट होके और ये सारे आपके दिखते हैं। अब ऑब्वियसली ये हो गया आपका फंड का स्क्रीनर। अब वही आप फंड को कंपेयर करना चाहते हैं तो सेकंड है कंपेयर। आप ऐसे ही दो फंड को कंपेयर कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं लॉन्ग टर्म और इक्विटी को मैंने सर्च किया, फिर मेरे एसेट में टैक्स सेवर को ऐसे सर्च किया। अब ऐसे दो फंड हाउस होंगे, अब मेरे रेस्पेक्टिव 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, मिनिमम, मैक्सिमम, AUM, ओवरऑल एक्सपेंस रेशियो, एक पूरा एक स्नैपशॉट मिल सकता है, जिससे मैं ये फिर मैं स्नैपशॉट लेके कस्टमर को दिखा भी सकता हूँ। कंपेयर करने में क्या होता है, कई बार कस्टमर के डाउट होता है ये फंड कैसा है, वो फंड कैसा है, तो मैं दिखा सकता हूँ। देखो अब 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर का देखोगे तो सारे फंड में एक्सेस से मिरर ने बेटर किया, लेकिन उसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होते हुए बेटर। तो अगर कोई ये बोल दे कि नहीं आप ज्यादा एक्सपेंस वाला ले रहे हो, नहीं, आप कस्टमर एज लॉन्ग एज वो अपनी रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर रहा है वो बेटर फंड है, ऐसे आप प्रूव कर सकते हो या डिस्प्ले कर सकते हो कि ये रियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल। सिमिलरली आप यहाँ भी स्कीम डिटेल से डाउनलोड कर सकते हो और स्टार्ट कर। तो ये हो गया आपके केस में। इसके अलावा आप एक और यूनिक चीज कर सकते हो, थीमेटिक बास्केट बना सकते हो। थीमेटिक बास्केट में क्या है कि आप, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने कई तरह के फंड जोड़ के एक सिंगल बास्केट बना दी कि जैसे मैं 50,000 रुपए में ये 4 फंड आप ले लीजिए, इनको ऐड कर लीजिए।
तो जैसे आपने एक फार्मा स्पेशल बना दिया, तो फार्मा स्पेशल के बास्केट आप देखोगे, इस बास्केट में मैंने जो फंड चूज किया उसका CAGR 21.5% है। तो आप उसको ये दिखा सकते हो कि ये बास्केट मैंने बनाई, देखो ये CAGR है 21.5%, वैसे FD का। तो अब आप इस बास्केट में क्या क्या है इसको क्लिक करेंगे और इसके अंदर दिख जाएगा। ये बास्केट कैसे बनानी है, अगर आप यहाँ एडिट करें तो ये एडिट हो जाएगी, नई बन जाएगी। आप अपने से भी 2-4 फंड के कॉम्बिनेशन जोड़ के बास्केट बना सकते हो। तो ऐसे करके यूनिक म्यूचुअल फंड के थीमेटिक बास्केट्स बना सकते हो जो आपकी चॉइसेस के हैं, जो फंड आप प्रेफर करते हो या लाइक करते हो, उनको आप यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हो और उनको हेल्प कर सकते हो कस्टमर लोग को शेयर करके। तो ऐसे अलग तरह के ये बना सकते हो। जो भी आपने यहाँ बनाया ये कस्टमर को दिखेगा, जब क्लाइंट अपने लॉगिन करे तो उसको भी दिखेगा, आप उसके लिए भी है, आपके रेफरेंस के लिए भी ये सजेशन हो जाते हैं जो रेडीमेड अवेलेबल है। आप उसको एडिट करके, क्रिएट करके या सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग बास्केट बन गए। ये सब म्यूचुअल फंड के बास्केट। इसके अंदर आप क्लिक करके जाओगे, जैसे मैंने एडिट किया तो आपको दिख जाएगा, जैसे मैंने ये वाला फंड, ये वाला फंड, ये वाला, और इस रेशियो में मैंने लिख के रखा हुआ है ताकि इस रेशियो में मुझे इन्वेस्ट करना है रफली। ये मेरा सजेशन है, कस्टमर ऑब्वियसली अपने हिसाब से कर सकता है, लेकिन आप एक सजेशन बना सकते हो, चूज करके रख सकते हो कि मैं 2 फार्मा लेता हूँ, 1 चीज लेता हूँ, एग्जाम्पल है। और अगर किसी को हटाना है तो हटा भी सकते हो, नया बना भी सकते हो, जो भी आप इसमें करना चाहे कर सकते हो। अब एग्जाम्पल ये हो गया आपका फंड रिलेटेड। अब इसमें न्यू फंड के ऑफर्स अगर आ रहे हैं तो वो कौन से अभी अवेलेबल है, तो उसके बारे में अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपको नए फंड के ऑफर्स, जैसे अभी SBI का कोई बॉन्ड फंड चल रहा है वो अवेलेबल है, ICICI का सिल्वर है, कोटक का मिड कैप ETF है ऐसे, और एक्सिस का नेक्स्ट 50 इंडेक्स का फंड है। तो ऐसे कई तरह के आपके फंड्स हैं। ये पेज भी जो है ये आप कस्टमर को भेज सकते हो। अगर आप देखोगे बैक टू होम, ये आपकी होम पेज पे लिंक था, तो ये आप भेज सकते हो। और जैसे एग्जांपल मैं दिखाता हूँ कि अगर demo.fundexpert.net पर ये है और यहाँ मैंने NFO क्लिक किया, ये पेज हो गया। ये पेज आप किसी भी कस्टमर को भेज सकते हो। अगर उसको ये पेज अच्छा लगा तो यहाँ रजिस्टर ऑप्शन रहेगा, उसने यहाँ बाई फंड किया या क्लिक किया तो रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होते के साथ आपको एक ईमेल अलर्ट आ जाएगी कि सो एंड सो हैज रजिस्टर्ड। तो अगर आप ये लिंक को पॉपुलर करते हो कि लुक फॉर न्यू NFOs हियर, तो उससे क्या होता है, आपको कस्टमर एक्वायर कर सकते हो, नए कस्टमर, इंटरेस्टेड कस्टमर। आजकल बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया और बहुत जगह है जहां पर आप ऐसा कहीं राइटअप रहेगा कोई नए फंड के बारे में, आप अपने लिंक वहां डाल दो, रिमार्क में, रिप्लाई में, कहीं भी, और आपको उससे लीड्स आ जाएगी। और जैसे कोई रजिस्टर करेगा आपके वेबसाइट में, आपको अपने आप उसके नीचे वो कस्टमर क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे NFO हो गया, अलग ऑप्शंस हो गए। तो ये आपने देखा म्यूचुअल फंड में कई सारा ऑप्शन है। इसमें बल्क सिप ऑर्डर्स, बल्क वन टाइम ऑर्डर्स, ये सारे भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जो एक साथ मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए यूज होते हैं। फिर उसके बाद दूसरे भी प्रोडक्ट, जैसे मैंने बोला ना, ये फंड एक्सपर्ट ऐसा एक सोल्यूशन है जहां पर और भी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जैसे P2P लोन इन्वेस्टमेंट्स है, इंश्योरेंस है, CRM है, बहुत सारे अलग इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो इसके अंदर इनबिल्ट है, जो आप यूज कर सकते हैं और अपने कस्टमर को सर्व करने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरे प्रोडक्ट्स में NPS है, कैपिटल गेन बॉन्ड है, SGB है, बहुत सारे हैं, सब सीमलेसली इनबिल्ट है। तो आपके लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म हो जाता है जो सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को केटर करता है और आपके लिए लाइफ इजी बना देता है। तो जब आपने ये सब देखा, अभी जैसे मैं अभी ये आप देख रहे हो जब आप सेटअप कर रहे हो, अब एक क्लाइंट क्या व्यू देखेगा, क्लाइंट क्या देखेगा, तो आप क्लाइंट व्यू देखना चाहते हो, आप सर्च क्लाइंट यहाँ से भी कर सकते हो, क्लाइंट लिस्ट निकाल के पूरी, नहीं तो यहाँ शॉर्टकट है, जो क्लाइंट का 2-4 लेटर लिखिए और क्लाइंट का नाम आ जाएगा, जैसे मेरे को स्क्रीन में यहाँ दिख रहा है। तो मैंने क्लाइंट आ गया, मैंने क्लाइंट यहाँ सेलेक्ट कर लिया। मैं क्लाइंट वाइज सेलेक्ट करता हूँ, क्लाइंट फैमिली वाइज भी सेलेक्ट करता हूँ। कोई पर्टिकुलर फैमिली है, कई बार हम क्लाइंट की फैमिली बनाते हैं, फैमिली हेड्स को सेलेक्ट करना, तो या मास्टर क्लाइंट से आप सेलेक्ट करें। तो जैसे मैंने यहाँ सर्च किया और वो क्लाइंट आया, मैंने क्लाइंट के ऊपर क्लिक किया, तो ये जो मेरा व्यू है, ये सडनली ये व्यू चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी IFA से एक क्लाइंट के अंदर लॉग इन हो जाऊँ। तो आप देखोगे यहाँ पर चेंज हो गया, आ गया लॉग इन एज माई सेल्फ, मतलब मैं अब इस क्लाइंट के अंदर आई हैव लॉग्ड इन एज वनीता जो मेरी क्लाइंट है, मैं उसके अंदर चला गया हूँ। तो मेरे लिए अब यहाँ पर बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि अब मैं यहाँ देख सकता हूँ कि उसकी क्या क्या इन्वेस्टमेंट है। तो पहले तो मैं एक टेबल व्यू दे सकता हूँ जो एक समरी है कि मेरा ओरिजिनल वैल्यू क्या है, करंट वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट रिटर्न क्या है, ये सब डिटेल देख लिया। अगर मुझे उसके बारे में ट्रांजैक्शन और बहुत कुछ डिटेल चाहिए तो होल्डिंग में चला जाता हूँ, होल्डिंग में जाऊँ या क्लिक करता हूँ तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन खुल जाते हैं। अगर मुझे ये देखना ये सारे तो उसके अभी लाइव फंड्स हैं, हो सकता है उसके पास पुराने कुछ मैंने खरीदे थे वो उसने बेच दिया, ऑल करूंगा तो उसने जितने सेल कर दिए वो सब फंड्स वो भी डिस्प्ले में जनरेट होके आ जाए। तो इस केस में कुछ नहीं है, ये तो डेमो अकाउंट है। तो अगर ऐसा हो गया तो ये मेरा टेबल व्यू हो गया। ऐसे ही टाइमलाइन व्यू है जो दिखाता है कि टाइम वाइज कैसे कैसे कौन सा फंड परचेज और सेल। तो ये मेरे व्यूज हो गए। तो अब मुझे अगर मान लीजिए ये तो वो फंड्स हैं जो उसने मेरे थ्रू लिए, मेरे ARN के थ्रू। लेकिन कई बार ऐसा होता है कस्टमर सिर्फ आपसे डील नहीं करता, वो कहीं और से भी डील करता है,
किसी और IFA या MFD या बड़ी कंपनी से या कोई और कंपनी से, कई बार डायरेक्ट प्लान भी खरीद लेता है, तो वो सारे को आप भी यहीं पर ट्रैक करवा सकते हैं। और ये उसके लिए भी बहुत बड़ा फायदा है कि कस्टमर को अगर सारी चीज एक जगह ट्रैक होता है तो उस प्लेटफॉर्म से वो ज्यादा वो हो जाता है कि ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए इजी है, क्योंकि सब मेरे यहाँ एक ही जगह दिख रहा है, तो मुझे 4 जगह जाके अपना पोर्टफोलियो नहीं देखना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी सारी यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग टूल बना हुआ, ट्रैक योर फोलियो। ट्रैक योर फोलियो में आप जाते हो तो उसके अंदर के जितने भी उसके फंड्स है वो आप जनरेट करके मंगा सकते हो। यहाँ फेच पोर्टफोलियो है। फेच फोलियो में सबसे बहुत इंटरेस्टिंग फीचर और मोस्ट पॉपुलर फीचर में से एक है, आप कस्टमर का जो ईमेल आईडी ऑलरेडी एंटर्ड है, क्योंकि आपने जब प्रोफाइल बनाया हो, कस्टमर बनाया हो, तो आ चुका है, लेकिन नहीं है तो आप एनीवे डाल सकते हो। और जब आप रिक्वेस्ट करते हो तो एक फाइल आएगी, कैश बोलते हैं जिसको, के फिनटेक से मेल में, वो फाइल आपने डाउनलोड की और फिर यहाँ फेच पोर्टफोलियो में अपलोड कर दी। जैसे ही अपलोड होगा वो आपको दिखाएगा कि अब आप जाओ म्यूचुअल फंड डैशबोर्ड में और आपके नीचे वो सारे वो फंड्स लोड हो जाएंगे जो उस कस्टमर के पैन पर उसने खरीद रखे थे इस ईमेल आईडी पर से लिंक थे। तो वो सारा के सारा डेटा यहाँ आ जाएगा पूरे ट्रांजेक्शन, उसको एक्सटर्नल है। तो आप सोच रहे हो उसने 20,000 का आपके थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है जिसकी वैल्यू इतनी बढ़ गई, आप एक्सटर्नल में जाके देखोगे तो पता चलेगा उसकी तो 30 लाख की और पोर्टफोलियो पड़ी हुई है, जो उसने आपसे नहीं ली थी, किसी और से ली थी, लेकिन है आज के डेट में। तो अब उसको आप ये सारे फोलियो देख सकते हो। और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें कुछ जो रेगुलर प्लान्स है उसको आप ऑब्वियसली यहाँ पर ट्रांजैक्ट कर सकते हो, जैसे डायरेक्ट प्लान्स हैं उनको रिडीम कर सकते हो, और रेगुलर प्लान्स है उसको स्विच करके अपने नीचे शिफ्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप स्विच नहीं करते तो ARN चेंज फॉर्म है, ऐसे करके आप यहाँ डाउनलोड एक ARN ट्रांसफर फॉर्म है, आप उसको ARN चेंज करके अपने नीचे ला सकते हो। तो जो कस्टमर आपने नया एक्वायर किया है उसका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो जो अभी आपके पास नहीं है उसको भी आप अपने नीचे मैनेजमेंट में ला सकते हो। एक सिंपल सा फॉर्म है जो आपको डाउनलोड करना है, क्लिक करना है, साइन करना है, अपलोड और सबमिट करना है। तो ये सारी चीजें हो जाती है। ये बहुत ही पावरफुल टूल है। इससे हमारे IFAs ने जो यूज करते हैं अपना पोर्टफोलियो कई गुना और कई कितना ज्यादा बड़ा बना लिया है, और कस्टमर को भी बहुत आराम होगा कि उसको सब एक डिटेल इंफॉर्मेशन एक जगह मिल रहा है, तो उसका बिजनेस बहुत ज्यादा इससे इंप्रूव हो गया। तो ये एक्सटर्नल वाला टूल बहुत बहुत पावरफुल है और ये एकदम सीमलेस काम करता है और आपको मैक्सिमम एज देता है आज के टाइम में। जब प्लस सबसे बड़ा एडवांटेज, आप यहाँ पर एक क्लिक में बहुत सारी चीज कर सकते हो। जैसे एक क्लिक में आप यहाँ SOA डाउनलोड कर सकते हो, इसमें एनेबल नहीं है, लेकिन आप इसमें अगर आप ये डेमो अकाउंट है, लेकिन आप बेसिकली यहाँ उसका ऑपरेट स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो। सेकंड, उसका सब डायरेक्ट फंड्स रिडीम कर सकते हो। कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर डायरेक्ट फंड्स को रिडीम करने का ऑप्शन नहीं देता है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है ऐसा। जितने भी आपने सॉफ्टवेयर देखेंगे, आप फंड एक्सपर्ट के अंदर कस्टमर के डायरेक्ट फंड्स रिडीम करवा सकते हो। ऑब्वियसली उसके कंसेंट से पूछ के आप करवाओगे, अपने से आप नहीं ट्रिगर करोगे नेचुरली, क्योंकि आप एडवाइजर ऑलवेज कस्टमर की कंसेंट से काम करता है। लेकिन जो फंड्स उसके अच्छे नहीं चल रहे हैं, बहुत सारे फंड्स ऐसे होंगे कस्टमर उसने खरीद रखे हैं लेकिन कोई देख नहीं रहा है, तो नेचुरली टाइम टू टाइम उसका टाइम हो जाता है। कई बार एसेट एलोकेशन चेंज करना पड़ता है कि आपका बहुत ग्रोथ हो गया है तो इसको आप पैसा मूव करें, यहाँ से वहाँ चेंज करें, उस समय आपको जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा बहुत जगह है जहां पर आपको रिडेम्पशन की रिक्वायरमेंट होगी और आप इस प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट फंड्स रिडीम कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग। सो आपने इसमें 2-3 फीचर देखे जो बहुत यूनिक थे, कि जैसे आप एक क्लिक में डाउनलोड कर लेना ऐप का, एक क्लिक में उसका एक्सटर्नल मंगा लेना और फिर उसका सारा ट्रैक कर लेना, प्लस उसके ऊपर स्विच और ट्रांजैक्ट सब कर लेना, या ट्रांसफर ARN कर लेना, या फिर आप उसको अपने नीचे डायरेक्ट फंड्स रिडीम भी कर लेना, वो भी ऑप्शन अवेलेबल। प्लस ऑब्वियसली आप इसके अंदर और भी बहुत सारे वही फीचर्स हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे कैपिटल गेन्स रिपोर्ट है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट्स, ELSS की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है जो उसको ELSS क्लेम करना चाहिए, पोर्टफोलियो वैल्यूएशन रिपोर्ट है जो पर्टिकुलर डेट और पर्टिकुलर टाइम पे चलती है, पोर्टफोलियो समरी या पोर्टफोलियो स्टेटमेंट है, होल्डिंग समरी रिपोर्ट है। ऐसे कई तरह की रिपोर्ट्स और सिस्टम बने हुए हैं जो आपको बहुत ईजी होते हैं, सिंप्लीफाइड रिपोर्ट्स हैं और इजी हैं, जो आप कस्टमर को डाउनलोड करके कम, इसमें भी आपका लोगो और आपका नेम और आपका सब कुछ आता है, आप डाउनलोड किया और कस्टमर को आपने दे दिया और उसका काम हो जाए, और कस्टमर खुद भी यहाँ से डाउनलोड कर सकता है, आपकी एनर्जी बचा सकता है। तो रिपोर्ट्स हो गया, रिपोर्ट सेक्शन हो गया। ऑर्डरशिप में आपको सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये प्लेटफॉर्म जो हम बना रहे हैं, सारा प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप इसके थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कस्टमर भी ट्रांजैक्शन कर सकता है, आप भी कर सकते हो।
क्योंकि ये ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है, तो पीछे BSE स्टार, NSE और नेक्स्ट मंथ हम MFU भी इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये सारे प्लेटफॉर्म इसमें इंटीग्रेटेड रहेंगे। आपने जो भी प्लेटफॉर्म चूज किया हुआ है, क्योंकि नेचुरली एक IFA एक बार में एक ही प्लेटफॉर्म को ट्रिगर कर सकता है और कनेक्टेड हो सकता है, तो जो भी प्लेटफॉर्म है, क्योंकि तीनों ही अपने आप में अपने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है आप उससे इंटीग्रेट किया हुआ है, तो आप उसके थ्रू यहाँ पर ट्रांजैक्शन प्लेस कर सकते हो और उसको ट्रैक भी कर सकते हो। मतलब वो ट्रांजैक्शन प्लेस करने, जैसे BSE स्टार है, आपने ट्रांजैक्शन प्लेस किया, अब वो ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, कहाँ जाके देखें पेमेंट स्टेटस, कहीं नहीं देखना है, यहीं पर पेमेंट स्टेटस, ऑर्डर स्टेटस, जो भी आपको देखना सारा यहीं दिख जाएगा, सारे की सारी इन्फॉर्मेशन यहीं अवेलेबल हो जाएंगे। ये सब डमी है जो आप देख रहे हो, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन यहीं अवेलेबल होगी। आपको बस यहाँ एक क्लिक करना है, पेमेंट स्टेटस देख लीजिए, उसका पेमेंट कस्टमर ने किया नहीं किया, क्योंकि जैसे आप ऑर्डर प्लेस करते हो पेमेंट लिंक जाती है। सेकंड बड़ा एडवांटेज है जो हम यहाँ पर ले आते हैं, कई बार होता है जैसे BSE स्टार से स्पेशली जो उन्होंने काम किया कि आपने पेमेंट ऑर्डर डाला, कस्टमर को कई बार लिंक नहीं मिली। यहाँ पर क्या होता है, जब आप यहाँ ऑर्डर डालते हो तो सॉफ्टवेयर आपके तरफ से एक मेल भेजता है कस्टमर को और एक कॉपी ऑफ द मेल आपको भी भेजता है जिसके अंदर वो लिंक होती है। तो अगर कस्टमर को मेल नहीं मिला BSE वाला, तो उसके पास वो मेल है जो आपने ट्रिगर किया है और आपके पास भी एक कॉपी है जो आप उसको वापस भेज सकते हो, जिससे वो पेमेंट कर सके ऑनलाइन बिना कोई रुकावट। सेकंड वो एडवांटेज हो जाता है कि आपके पेमेंट और या ऑर्डर प्रोसेसिंग एकदम स्मूथ और सीमलेस हो जाती है, आपकी लाइफ एकदम इजी हो जाती है, कोई डाउट नहीं रहता। सेकंड बड़ा एडवांटेज है जब आपको कई बार स्विच, STP ये सब करना पड़ता है, SIP डालनी पड़ती है, तो अगर आप हमारा प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो आपको BSE एक स्पेशल राइट देता है जो ऐसे अवेलेबल नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो कि BSE के अंदर आप जाते हो, अगर आप नॉर्मल डायरेक्ट यूजर हो या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो वो आपको मैनुअल UCC ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है, क्योंकि BSE अलाउ नहीं करता है आपको UCC ऑथेंटिकेशन हटाने का। लेकिन फंड एक्सपर्ट के साथ चूंकि BSE का टाई अप है या वो अंडरस्टैंडिंग को पता है कि हमारे सिस्टम के अंदर ही सारे ऑथेंटिकेशन इनबिल्ट है, तो आप उसको एक मेल भेज सकते हो जिसमें लिखा रहेगा आई एम यूजिंग नाउ फंड एक्सपर्ट प्लेटफॉर्म, आप ये UCC ऑथेंटिकेशन एंड वी हैव आवर ऑथेंटिकेशन सिस्टम इनबिल्ट, सो यू कैन रिमूव इट। तो उससे क्या होता है, सबसे बड़ा एडवांटेज होता है आपके जो क्लाइंट इनएक्टिव हो जाते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं, BSE डिलीट कर देता है, BSE के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, क्योंकि कई बार BSE का मेल जी नहीं जाता है, ऑथेंटिकेशन का SMS नहीं जाता, बहुत सारे इश्यूज हैं BSE के साथ होते रहते हैं, क्योंकि वो बेसिकली एक बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म में थोड़ी उतने लेवल पर उतना स्ट्रांग नहीं। तो इसलिए आपको ये सारे एडवांटेज यहाँ मिलते हैं कि आप यहाँ से वो सारी चीज कर सकते हो जो आपके लिए बहुत ईजी है, और आपको वो राइट मिलता है जिससे आपको एकदम प्रोसेस और स्मूथ हो जाता है, सीमलेस हो जाता है, और फिर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन फेस करने में, ये सब करने में बहुत आराम हो जाता है, क्योंकि बार बार वो ऑथेंटिकेशन सारे इनबिल्ट यहीं पर है, आपको अलग से नहीं करना पड़ता। तो ये बहुत ईजी और वे बना देता है आपके डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए। इनफैक्ट जो लोग यूज करते हैं इसको, वो लोग के लिए ये सबसे बड़ा बोन है कि मेरा कोई भी ट्रांजैक्शन का हेडेक खत्म हो जाता है। फिर ऑब्वियसली यहाँ पर आप सिप्स की लिस्ट देख सकते हो, कस्टमर की कौन कौन सी सिप चल रही है, उसमें प्लेटफॉर्म से कौन सी चल रही है और आउट ऑफ प्लेटफॉर्म कौन सी चल रही है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप सिर्फ यहाँ चला रहे हो, अभी आपने सिर्फ यहाँ से स्टार्ट की, वो तो BSE NSE के थ्रू है, लेकिन कई बार आप पेपर से भी सिप लगा दे रहे हो या IMC के ऐप से सिप कर रहे हो, तो वो सारे आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म सिप हो। तो यहाँ टोटल हम दिखाते हैं, यहाँ प्लेटफॉर्म रनिंग सिप्स क्या है और टोटल रनिंग सिप्स क्या है। तो हम ही ऐसे यूनिक है जो ये दोनों पर दिखाते हैं, प्लस उसके अंदर ऑप्शंस भी आपके पास रहते हैं कि आप चाहे तो उनको दोनों का अलग अलग मैनेज कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो। प्लस ऑब्वियसली जो ऑर्डर्स आपके सक्सेसफुल नहीं हुए कोई कारण से, तो वो क्यों सक्सेसफुल, उसके रीजंस, उसके सब कुछ यहाँ अवेलेबल होता है, ताकि आप उसके हिसाब से उस पर एक्शन ले सको या उसको रिजॉल्व कर सको। तो ये हो गया आपके ऑर्डर्स ब्रेक से। फिर ऑब्वियसली हम मैंडेट्स हैं, तो आप जैसे जानते हैं कई तरह की ई मैंडेट्स आ गए आज, जो 48 आवर्स 24 आवर्स में सारे अप्रूव हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। वो सारी ई नैच मैंडेट एक एक क्लिक से यहाँ कर सकते हो। किसी किसी के पास ऐसे बैंक अकाउंट है जहाँ ई नैच नहीं चलता है, और ऑनलाइन नेट बैंकिंग नहीं है, डेबिट कार्ड नहीं, तो नैच मैंडेट भी बहुत सिंपल ही है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक है, पेपरलेस ही जैसा है। आप डाउनलोड करो, साइन लो, फोटो लेके भेज दो, फोटो अपलोड कर दो और वो मैंडेट चालू। ये बहुत इजी हो जाता है। इस तरह के मल्टीपल मैंडेट्स इनबिल्ट है, हर एक्सचेंज के अपने अपने मैंडेट्स हैं, ई मैंडेट्स और नॉट ई और स्कैन मैंडेट्स, वो सारे अवेलेबल है। फिर ऑब्वियसली तो ये सारे यूनिक फीचर्स हैं। ऑब्वियसली इसमें जैसे सेव टैक्सेस है, ELSS फंड्स का है, स्मार्ट असिस्टेंट कुछ क्वेश्चन पूछ के उसको रिस्क प्रोफाइलिंग से कनेक्ट करके उसको सजेस्ट करने की कोशिश करता है कि आपका रिस्क प्रोफाइलिंग है, ऐसे करके कुछ यूनिक टूल्स और सर्विसेज हैं इनसाइड द प्लेटफॉर्म जो आपकी लाइफ इजी करता है। फिर ऑब्वियसली जब कस्टमर ये है, तो हम जैसे यहाँ पर दूसरे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, स्टॉक्स हैं, जिस पर वो स्टॉक पर भी काम कर सकता है, डीमैट अकाउंट इसके अंदर से ओपन कर सकता है, और हमने यहाँ पर भी सब यूनिक टाइप किया हुआ है।
ये सारे टाइप्स जो हम करते हैं, जो आप लोग के बिहाफ में सारे प्रोडक्ट प्रोवाइडर्स हैं, उनमें बहुत सारे कंडीशंस रहते हैं जो इन लोगों को मानने पड़ते हैं, क्योंकि वो हम इन्फोर्स करते हैं। जैसे P2P लोन्स इन्वेस्टमेंट में हमारा जो कंडीशन बहुत क्लियर है कि अगर क्लाइंट ऑनबोर्ड हो गया, यहाँ से मेरे IFA ने ऑनबोर्ड कर दिया, वो क्लाइंट कल को डायरेक्ट भी जाए आपके पास तो भी उसका रेवेन्यू शेयर मेरे IFA को मिलना चाहिए। इस टाइप की स्पेशल रूल्स है जो कि आप डायरेक्टली एनफोर्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए जो एग्रीमेंट बनाना की पावर चाहिए वो एज ए इंडिविजुअल IFA के पास नहीं रहेगी। आपको एक स्टैंडर्ड पेपर मिलेगा, आपको साइन करना पड़ेगा। हमारा सारा एग्रीमेंट कस्टम में बिल्ट होता है इन सबके साथ। तो वो पावर एडवांटेज हम आपको लाके देते हैं क्योंकि हमको मालूम है। सेकंड, आपको एडवांटेज भी मिलता है। यही कंपनी लिक्विड लोन से आप डायरेक्ट जाके टाइप कीजिए, आपको मिलेगा 0.85% ट्रेल। अगर आप हमारे थ्रू यहाँ ट्रांजेक्शन करें, आपको मिलेगा 1% ट्रेल। वो अपने आप ही सब आपका जो जो पे आउट्स है वो हायर होता है, टर्म्स बेटर होते हैं, कंट्रोल होता है कस्टमर पर। जो जो हम एडवांटेज आपको दिला सकते हैं, सारे एडवांटेज इसके अंदर बिल्ड करते हैं। प्लस ऑब्वियसली सारे कस्टमर सपोर्ट आपको एक जगह मिल जाता है। आपको इन 15 कंपनी से 15 कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट से नहीं डील करना पड़ता, क्योंकि सारे से आपका जो RM होता है वो ऑलरेडी डील कर रहा होता है। और आपको तो सिंगल पॉइंट है, आप अपने बिजनेस पर फोकस कर सकते हैं, अपनी लाइफ पर फोकस कर सकते हैं। इन सब का हेडेक आप इतने लोगों को ना आप हायर करके रख सकते हैं, ना मैनेज कर पाएंगे। यहाँ सिंगल पॉइंट, सिंगल MIS में आपका सारा काम इजीली हो जाता है। ये सारा इनबिल्ट और इन प्रोसेस है। स्टॉक्स में भी हमने, जैसे डीमैट है और स्टॉक्स ट्रेडिंग है, इसके लिए भी हमने जो कंपनी से टाइप किया वो भी बहुत यूनिक है। अब उसमें क्या है, उसमें सबसे बड़ा यूनिक फैक्टर ये है कि आप जितनी भी ब्रोकरेज कंपनी से जाओ, वो लोग बोलते हैं ये मेरा ब्रोकरेज प्लान है। ये हमारी ब्रोकरेज कंपनी का यूनिक सिस्टम है। हमारी ब्रोकरेज कंपनी बोलती है आप बताओ आपको क्या ब्रोकरेज चार्ज करना है। तो हमारा फ्लेक्सी ब्रोकरेज, अगर आप डिसाइड करो एज एन IFA मैं अपने कस्टमर को ये ब्रोकरेज चार्ज करना पड़ता हूँ, हम वही ब्रोकरेज चार्ज करेंगे। टैरिफ शीट आप डिजाइन करो। तो ये वाला पावर आपको दूसरी कोई कंपनी में नहीं है। उनके टैरिफ शीट बने हुए हैं और आपको वही अवॉइड करना है। यहाँ पर टैरिफ शीट आप बनाओ, जो भी ब्रोकरेज होता है उसको 50-50 शेयर, आपको 50 मिलेगा और 50% जाएगा। तो आपका शेयर भी फिक्स्ड है, आपको पता है आपको क्या मिलने वाला है, और आपकी वो क्या बोलते हैं वो भी क्लियर है। क्या बोलते हैं कि ब्रोकरेज टैरिफ, अगर आपको उनका स्टैंडर्ड टैरिफ ऑलरेडी लोएस्ट है, लेकिन अगर आपको वो नहीं चाहिए और कोई स्पेसिफिक टैरिफ चाहिए, क्योंकि नहीं मैं अपने कस्टमर को इतना ही चार्ज करना चाहता हूँ, डिलीवरी पर इतना, F&O पर इतना, तो आप पूरा अपना नया टैरिफ शीट डिजाइन करिए और वो नया टैरिफ शीट आप सबसे, आपके कस्टमर से साइन कराइए। तो बेसिकली ये ब्रोकरेज कंपनी आप ओन करते हैं, हम लोग ने ऐसा बनाया है। डे टू डे हेडेक नहीं है, मैनेजमेंट उसको करना है, सेबी कंप्लायंस उसको करना है, ऑडिट उसको करना है। आपको सिर्फ एंजॉय करना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, ग्रो करना है, और वही हम चाहते हैं आप करें। और डे टू डे मैनेजमेंट उस इंश्योरेंस का, उस ब्रोकरेज कंपनी का है, सारे कंप्लायंसेस का, कस्टमर मैनेजमेंट का और रिस्क मैनेजमेंट का। आपका काम है कस्टमर को हेल्प करना, ऑनबोर्ड करना। टेक्नोलॉजी वो लाएगा, सब कुछ वो लाएगा, आपका बहुत ईजी हो जाएगा। तो इतना हमने सिंपल और इजी सिस्टम बना रखा है सब हर जगह, और जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। सेकंड बड़ा एडवांटेज, हमने उस टॉप कंपनी से लेटर हेड में साइन कराया, क्योंकि इंडिया में ओनली ब्रोकरेज कंपनी है। और हम श्योर है अगर आप कोई दूसरी ब्रोकरेज कंपनी लार्ज स्केल में ऐसा साइन करके नहीं देगी। जिस स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी की बात कर रहे हैं वो इतनी छोटी भी नहीं है, 10,000 करोड़ का डेली का टर्नओवर है उसका स्टॉक मार्केट। तो हम इसलिए 10,000 के ऊपर एक्टिव क्लाइंट्स हैं, तो उन्होंने साइन करके लेटर हेड में दिया कि हम अपने IFA के कस्टमर को कोई भी दूसरी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज नहीं मार्केट करेंगे। ऐसा कोई भी लेटर हेड में साइन करके नहीं देता, हमने करवाया। क्योंकि हमको मालूम है कि हमको अपने क्लाइंट का डेटा सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है। हमने सारी चीजें हर जगह वो मेंटेन की हुई है। आपको कोई भी ऐसा सर्विस प्रोवाइडर नहीं मिलेगा जो आपके कस्टमर को आपकी इजाजत के बिना डिस्टर्ब करे। इंश्योरेंस एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंश्योरेंस हमने इंटीग्रेट किया हुआ, वहां पर भी स्पेशल टाइप है IFL इंश्योरेंस, और उसमें भी हमने ऐसा डाला हुआ है कि जो प्रोडक्ट सर्विसेज यहाँ आपको मिलती है वो वही मिलेंगी। अगर आप डायरेक्ट भी जाकर टाइप करोगे तो भी वही पे आउट मिलेगा जो यहाँ मिल रहा है। प्लस आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट सर्विसेज वो देता है, एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है, क्योंकि उसको मालूम है कॉर्पोरेट ऐप है। और उसके अलावा वो इंश्योर करता है कि आपको आपके कोई भी कस्टमर को कॉल नहीं जाएगा। वो अगर आपने इंश्योरेंस का प्रपोजल बनाया तो वो आप ही के ऊपर है, आप वो फॉलो करो नहीं करो, प्रपोजल एग्जीक्यूट करो नहीं करो, जो भी आपके पास चॉइस है। तो इंश्योरेंस का पूरा प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड है इसके अंदर, आपके लिए बहुत इजी हो जाता है कोई भी पॉलिसी, अलग तरह की पॉलिसी भी जनरेट करने का। सेकंड, ये मॉडल थोड़ा अलग है इंश्योरेंस का, हमारा नॉर्मल POSP मॉडल नहीं है। तो आप POSP किसी के साथ कर रहे हो तो वहां पर बहुत सारी लिमिटेशन होती है, कुछ पॉलिसीज आप नहीं डील कर सकते हो। यहाँ ओपन मॉडल है, आप वर्चुअली एनी एंड एवरी पॉलिसी डील कर सकते हो।
चाहे वो ट्रैवल इंश्योरेंस हो, चाहे वो डायरेक्टर इंश्योरेंस हो, चाहे कंपेंसेशन लायबिलिटी इंश्योरेंस, हर तरह की इंश्योरेंस आप डील कर सकते हो बिना इंश्योरेंस के लाइसेंस लिए, सबसे बड़ा एडवांटेज, और बिना उस प्रेशर के कि मुझे इतनी मिनिमम पॉलिसी करनी है। आप और जो कंपनी की पॉलिसी आपको पसंद है आप उसका बेचिए, यहाँ पर सारी कंपनीज अवेलेबल है। इसके अंदर हमने मल्टीपल टाइप्स किए हुए हैं, अगेन मल्टीपल कंपनी से, टू इंश्योर कि आपको पूरे रेंज ऑफ ब्रेड्थ मिलता है। तो ये हो गया, ये सारे चीजें, और प्रोडक्ट सर्विसेज भी यहाँ अवेलेबल है। सॉफ्टवेयर के अंदर भी आपको दिखेगा ओवरऑल डैशबोर्ड में क्या आता है, उसके सारे कॉम्बिनेशन दिखते हैं कि मेरा म्यूचुअल फंड कितना है, मेरा P2P कितना है, मेरा स्टॉक्स कितना है, मेरा फिक्स इनकम क्या है, इसका टोटल, उसका ब्रेकअप और सब डिटेल है। तो ये सारे वो कस्टमर देख सकता है या समझ सकता है। फिर प्रोफाइल है, फिर गोल्स है, फिर फैमिली अकाउंट है। फैमिली अकाउंट में उसकी फैमिली वाइज डिटेल, जैसे फैमिली का, मेरी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, हर मेंबर का कितना इन्वेस्टमेंट है, हर इन्वेस्टमेंट का क्या ब्रेकअप है, ऐसे करके जितने भी, ये सैंपल है इसलिए इतने सारे फैमिली मेंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन बेसिकली इन्वेस्टेड इतनी ही है। तो और उसका ब्रेकअप है, और उसके अकाउंट में जाके करना हो तो एज अ फैमिली हेड आप जाके कर सकते हैं। तो जैसे वनिता फैमिली हेड है तो वो जाके हर जगह इन सब अकाउंट में जाके टेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ये पूरा सिस्टम इनबिल्ट है। ये हो गया आपको मैंने जो दिखाया, ये हो गया क्लाइंट व्यू, और आप उस क्लाइंट में जाके आप भी वो सब कर सकते हो। सेकंड, इसमें हमने बहुत सारी चीज रखी हुई, जैसे एग्जांपल है, क्लाइंट खुद से लॉगिन करे तो उसको रिडेम्पशन ऑप्शन नहीं दिखता है। आप लॉगिन करें तो आपको, लॉगिन इस क्लाइंट करें तो आपको दिखता है, क्योंकि सिस्टम को मालूम है कि ऐप लॉग इन है, आपको अलाउड है रिडेम्पशन टिकन करना, कस्टमर को अलाउड नहीं है बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे कस्टमर्स को रिडेम्पशन ऑप्शन दो, तो आप वो जाके सेटअप कर सकते हो रिडेम्पशन के अंदर। आपके पास एक बटन है एडमिन पैनल में जिसमें आप अलाउ रिडेम्पशन करो तो उसको अलाउ होगा, वो खुद से कर पाएगा, नहीं तो वो आप पर डिपेंडेंट रहेगा, आप करोगे तो ये सारी चीजें आपके थॉट प्रोसेस और उसके सोचते हुए सारी इनबिल्ट और की हुई। अब इसमें सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे अब मैं वापस डेमो ऐप अकाउंट में आ गया जो मेन अकाउंट है। अब इसके बैकएंड पैनल है, अगर मैं क्लिक करता हूँ गो टू एडमिन तो मैं बैकएंड पैनल में पहुंच जाता हूँ। यहाँ पर मुझे पूरा अपना यूजर का एनालिटिक्स मिलता है, कितने यूजर थे, उनको उसमें पैन कितने थे, केवाईसी कितने हैं, बीएससी आईडी किसने बनाई है, डॉक्यूमेंट कितने लोगों ने दिया है, ऐसे क्या क्या अपलोड हुआ है, फटका कितना पेंडिंग है, बैंक कौन से बैंक का कौन सा कस्टमर है, ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं, फिल्टर्स हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हो, एड्रेस, यूजर्स, पोस्ट करने के लिए, ईमेल करने के लिए। और यहाँ से बहुत सारी चीज करते हो, जैसे कस्टमर को लॉगिन डिटेल ईमेल करना, तो यहाँ से आप ट्रिगर कर सकते हो, उसको मिल जाएगा। आप चूज कर सकते हो कि सारे कस्टमर को भेजना है या सेलेक्ट करके भेजना है, सारे को भेजना है या एक साथ भेजना है, या सेलेक्ट करके जिसको जिसको भेजना है उनको लॉगिन क्रेडेंशियल किया, क्योंकि बिना आपके लॉगिन क्रेडेंशियल दिए कोई कस्टमर अपने से लॉगिन नहीं कर पाए। ठीक, तो आप उसको लिंक शेयर कर सकते हैं, वो फिर वो वेब और ऐप दोनों में क्रेडेंशियल चलते हैं। फिर फैमिली वाइज रिपोर्ट्स हैं, ऑर्डर्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, एम वाइज रिपोर्ट हैं, होल्डिंग वाइज हैं, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जरूरत पड़ेगी जब आप सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। जैसे एएम रिपोर्ट्स हैं, हर तरह की एएम रिपोर्ट है, आरटी वाइज, स्कीम वाइज, सिप रिपोर्ट्स हैं, एसटीपी रिपोर्ट्स हैं। मतलब आप जितनी तरह की रिपोर्ट सोच सकते हो, मैच्योरिंग इन नेक्स्ट मंथ, स्टार्टेड इन लास्ट मंथ, सिप रिपोर्ट, एसटीपी रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स हैं जो ओवरऑल डैशबोर्ड है कि ओवरऑल मेरा एएम कितना है, टॉप 10 कस्टमर्स कौन से हैं, टॉप 10 एएमसीज कौन से हैं, ब्रेकअप क्या है, इन सब के बारे में पूरा एक समरी या इंफॉर्मेशन। फिर आपके मोबाइल ऐप यूजर क्यों है, आप जिन्होंने आपसे ऐप लिया हुआ है, आपके ऐप यूज किया हुआ है, तो आपका ऐप का डिटेल्स और वो सारे अवेलेबिलिटी यहाँ मिलेगी। तो जैसे अगर अब मैं आपको मोबाइल ऐप ले जाऊंगा तो मोबाइल ऐप में आपका नाम, पता, एड्रेस, क्या क्या दिख रहा है आपको, हर जगह क्या दिख रहा है, आपका बीएससी पासवर्ड क्या है, आपका एएम कौन है, आपका पे आउट कौन सा बैंक में जाता है, उसका नाम क्या है। यहाँ सबसे बड़ा एडवांटेज बहुत लोगों को ये हो रहा है कि यहाँ पर जो पे आउट है ना, आप अपना, आपका एआरएन कहीं हो सकता है लेकिन आपका बैंक का पे आउट आप कुछ और कर सकते हो। तो बहुत लोगों ने एचयूएफ में अपना पे आउट कराते हैं, वाइफ के नाम से कराते हैं। तो उससे क्या होता है, आप अपना इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम टैक्स प्लानिंग कर पाते हो, क्योंकि आपका नहीं तो आपकी इनकम ऑलरेडी एएमसी से आ रही है, म्यूचुअल फंड से आ रही है, वो इनकम पर और ये सारे पे आउट्स आ जाएंगे तो आपकी और इनकम बढ़ जाएगी। तो उन्होंने इनकम को दूसरे नाम से ले लिया, उससे आपका बहुत टैक्स फाइल, हर टैक्स फाइल में इनकम जनरेट होने लग जाता है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। तो इस तरह से आप अपनी इनकम को सेव कर सकते हो, और ये इंश्योरेंस और इन सब से जितना भी पे आउट है, एसजीबी, इन सब का पे आउट को अलग जगह कलेक्ट कर सकते हो अपने मेन एआर में। तो ये एडवांटेज है, ये आप यूज कर सकते हो या यूज नहीं कर सकते, ये आपका चॉइस, लेकिन ये सारे इनबिल्ट है इसके अंदर। ऑब्वियसली इसके अंदर आप अपना लोगो, ऐप डिटेल सब चेंज कर सकते हो, ईमेल में क्या बैनर जाएगा, इसमें क्या दिखेगा, एड्रेस क्या होगा, कस्टमर क्या कॉन्टैक्ट नंबर देखेगा मेरा, सारे इंफॉर्मेशन, और इनफैक्ट ऐप का लुक क्या देखेगा, ऐप का थीम क्या देखेगा, सब कुछ एक्सेसिबल और सब कुछ एडिटेबल है। आपके एक बटन और एक क्लिक पर ये सारी चीज होने लग जाती है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। और सबसे बड़ा एडवांटेज, अगर वो कस्टमर ने आपके ऐप यूज करना स्टार्ट कर दिया तो आप उसको ऐप नोटिफिकेशन भेज सकते हो। उसका मतलब है रियल टाइम कम्युनिकेशन, मतलब आपका
मतलब ये एसएमएस और ईमेल सब आउटडेटेड है, लेकिन ऐप नोटिफिकेशन लेटेस्ट। आप देखोगे सब ऐप के शुरू नोटिफिकेशन आता है। ये आप नोटिफिकेशन चूज, इन्होंने ऐप डाउनलोड किया, चूज कीजिए, ऐप नोटिफिकेशन कीजिए, ऐप में जो जो लिखना है भेज दीजिए, और रियल लाइव उसके मोबाइल यूज करेगा, उसको वहां पॉपअप आएगा, उसका मोबाइल आएगा, आपने जो नोटिफिकेशन भेजा एनएफओ के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, एचजीबी के इशू के बारे में, जो भी आपको, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स के बारे में। पिछले 2 दिन से हमारा इतना इंपॉर्टेंट फेस्टिवल चल रहा है पूरे इंडिया में, तो सारी चीजें आप यहाँ लाइव भेज सकते हो। तो इससे बड़ा एडवांटेज है, कस्टमर ने अगर आपका ऐप डाउनलोड किया हुआ है आपके लिंक से, आपके ऐप से, तो यहाँ लाइव नोटिफिकेशन वाली सर्विस आपकी लाइव हो जाएगी और वो आप कर सकते हो। फिर आप डिटेल देख सकते हो, और ऑब्वियसली यहाँ एसओए और वीडियो केवाईसी, अगर आपने वीडियो केवाईसी कराते हो, प्लेटफॉर्म के अंदर वीडियो केवाईसी था, जस्ट इन केस में मिस कर गया, तो वीडियो केवाईसी कराया तो उसका वीडियो केवाईसी डिटेल्स यहाँ अवेलेबल होता है। इसके अंदर वो दिखता है कि उसने वीडियो केवाईसी कितना किया, पूरा एंड टू एंड कंप्लीट किया कि नहीं, लास्ट स्टेप हुआ कि नहीं पूरे, क्योंकि वीडियो केवाईसी कई प्रोसेस होते हैं और कई बार कस्टमर कोई प्रोसेस अगर कोई कंप्लीट नहीं करता है तो यहाँ पर आपको दिख जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ इनबिल्ट और इन डिजाइनर है। ऑब्वियसली यहाँ बहुत सारी यूटिलिटीज भी हैं, जैसे बीएससी की, कैम्स की, बाद में दूसरे दूसरे जैसे सॉफ्टवेयर की, और रॉ डेटा भी जो आता है यहाँ देख सकते हैं कि रॉ डेटा कौन सा आया, आज कौन सा दिन का डेटा नहीं आया, कैम्स का डेटा आया, क्या फाइल आ रही है, क्या सारा यहाँ आपको दिखता रहेगा, सब ओपन एंड ट्रांसपेरेंट है, ताकि आपको सिस्टम का ऑटोमेशन पर कोई डाउट नहीं रहे, सारा सिस्टम ऑटोमेट चलता है। इतनी कोई बड़ी टीम नहीं है कि 1400 लोगों के रोज के फाइल्स मैनुअली करते, सारा सिस्टम ऑटोमेटेड डेटा पढ़ के प्रोसेस करता है, और वो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल होते हैं। इसको देखना वो यहाँ देख सकता है अपने अपने अकाउंट में जाके। प्लस यहाँ प्रोडक्ट है, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जैसे लिक्विड लोन्स है उसकी पे आउट रिपोर्ट, इंश्योरेंस है उसकी पे आउट रिपोर्ट, डीमैट है उसकी रिपोर्ट, एनपीएस है उसकी रिपोर्ट, एसजीबी है उसकी रिपोर्ट, कैपिटल गेन्स उसके, तो हर प्रोडक्ट और सर्विसेज की रिपोर्ट्स आपको यहाँ मिलेगी। जो भी प्रोडक्ट आप डील कर रहे हो, सारे के प्रोडक्ट और सर्विसेज की पूरी डिटेल रिपोर्ट, सब कुछ आपको यही मिल जाएगा। आपको अलग से जाके कुछ भी प्रोसेस नहीं कर रहा, सारी की सारी चीजें एक ही जगह एमआईएस और पूरे डिटेल के साथ, क्या पे आउट था, क्या टीडीएस था, कब ट्रांसफर हुआ, किस दिन ट्रांसफर हुआ, कौन से पेमेंट मोड से था, यूटीआर क्या था, कौन सा अकाउंट में गया, आपको एक जगह पर सब कुछ ट्रैक कर सकते हो। कोई भी इतने सारे प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो, हर प्रोडक्ट का एमआईएस यही एक जगह अवेलेबल है, आपको वो दौड़ना ही नहीं पड़ेगा पूछने के लिए। जैसे एएमसी में आप लोग हमेशा रहता है कि इस एएमसी का आज पैसा आया कि नहीं, इसका प्रोडक्ट आया नहीं, यहाँ सब ओपन एंड ट्रांसपेरेंट क्लियर है, आपको हर इन्फॉर्मेशन यही है। ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट बहुत और भी दूसरे सॉफ्टवेयर से, कुछ सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है, कुछ और ऐसे रिसर्च सॉफ्टवेयर है, जैसे मॉर्निंग स्टार एक रिसर्च सॉफ्टवेयर, लेकिन वो प्रीटी कॉस्टली है। ऐसे एक दो और लोअर कॉस्ट रिसर्च सॉफ्टवेयर हैं जिससे ये सॉफ्टवेयर कनेक्टेड है और एकदम स्मूथली इंटीग्रेटेड है, तो यहाँ से अपने आप डेटा वहां जाता है, फिर वहां पर आप पूरा पोर्टफोलियो पर एनालिटिक्स और रिसर्च कर सकते हो, ऐसा सॉफ्टवेयर से भी टाइड है। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर लेते हैं उनके लिए स्पेशल फीचर्स और स्पेशल बेनिफिट्स हैं, और वो आपको बता दिए जाएंगे जब आप सॉफ्टवेयर यूज करोगे, अगर आपको एडिशनल एड ऑन फीचर चाहिए वो सब। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ ऐप, क्योंकि हमने मोरलेस सारा प्रोडक्ट देख लिया, अब एक 5-10 मिनट ऐप, फिर आपके सारे क्वेश्चंस में लेता हूँ। तो अगर वो मैं दिखाता हूँ कि ऐप कैसे आप यहाँ से सारा मैनिपुलेट, मतलब वो चेंज कर सकते हो ऐप के बारे में। तो एक बार मैं इसको साइड करता हूँ, जैसे मैं ऐप डिटेल में गया, मैं आपको अपने मोबाइल से कनेक्ट करूंगा और मेरे मोबाइल पर ऐप चला के दिखाऊंगा। तो जैसे मैंने अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लिया है एनएडेस्क, और अब आपको यहाँ से मैं अपने मोबाइल में कनेक्ट करता हूँ। फिर आपको इसे दिखाऊंगा। तो जो भी आप चेंजेस करोगे या कुछ भी करोगे, आप अपने ऐप पर वो सारे चेंजेस होते हुए, करते हुए देख सकते हो। तो एग्जांपल है कि जैसे एक एनएडेस्क में है, ये अपना मोबाइल फोन पे।
तो आप अब जैसे मेरा मोबाइल दिख रहा है, तो ये मोबाइल में जैसे मेरे अलग-अलग ऐप्स हैं। तो जैसे ये एक ऐप है, मेरा फंड एक्सपर्ट फिनटेक है, तो ये जैसे कलर है, ये थीम है। तो जैसे अभी 1 सेकंड में अपने ऐप को यहाँ पर मैं चेंजेस करूँगा और मेरे ऐप में एक चेंजेस होते चले जाएँगे, लाइव ऐप जो दिख रहा है और फिर वो सारे ऐप अपने ये देख सकते हैं। तो अभी जैसे मैं यहाँ एडिट कर रहा हूँ, आपको मेरी स्क्रीन इन इंडेक्स आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? 1 सेकंड सॉरी शायद स्क्रीन शेयरिंग हाँ, अब देखिए। अब आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, तो मैं आपको अब मेरी यहाँ पर मोबाइल लैपटॉप पे मैं अपना स्क्रीन दिखा रहा हूँ। तो जैसे ये फंड एक्सपर्ट है, ऐसे मैंने खोला, तो ये फंड एक्सपर्ट ऐप आया, फिर ये जैसे डेमो ऐप लिखा हुआ है। तो जैसे अब ये बहुत ब्राइट ग्रीन कलर है, तो मान लो मैं यहाँ चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ गया और इस कलर को मॉडिफाई करके और सेव कर दिया। जैसे मैंने यहाँ किया, अब देखो अब और फिर मैं अपने वापस ऐप वाली स्क्रीन जाता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, फिर वापस ऐप स्टार्ट करता हूँ। देखिए ऐप चेंज हो गया। तो जो भी चीज़ें हैं ये सब लाइव हो रही है। मतलब मेरा ऐप मेरे मेरे कंट्रोल में और ये ऐप मेरे सारे कस्टमर्स के पास होगा। तो सारे कस्टमर के इस जगह अपने आप ये चेंज हो जाएगा। जो मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ, चेंज हो जाएगा। जो भी मुझे यहाँ चेंज करना है, मैं ऐसे ऑन द स्पॉट आराम से कुछ भी ऐसे डाल के चेंज करके दिखाता हूँ। ऐसे लॉगिन कर लिया, तो ये जैसे ऐप आ गया, तो इसके अंदर मेरा एक कुछ आ गया फिर जैसे उसमें डिटेल आ गया, फिर ऐसे क्लाइंट आ गया, फिर ऐसे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। कोई भी क्लाइंट का डेटा ऐसे खोज सकते हो, जैसे ये मुझे कोई क्लाइंट का नाम याद नहीं आ रहा है, मतलब ये सब डमी है तो रंजन, जैसे रंजन आ गया, ऐसे क्लिक किया, तो मैं उसके अकाउंट में चला गया। जो आप देख रहे हो वो ऐप के फीचर्स हैं। लोड हो गया, अब ये रंजन बन गया। तो अब सडनली वो ऐप अब डैशबोर्ड में जाऊँगा तो मुझे रंजन दिखाएगा। उसके बारे में डिटेल आएगा, म्यूचुअल फंड आएगा, म्यूचुअल फंड के बारे में सारे डिटेल्स आएँगे, ऐसे डिटेल्स आएगा। मैं इसके अंदर उसके सारे वो सब देख सकता हूँ। उसके पोर्टफोलियो, उसके फैमिली मेंबर्स, उनके फैमिली में क्या है, ओवरऑल क्या रिटर्न है, क्या उसका इन्वेस्टमेंट्स हैं और अगर मैं उस पर क्लिक करूँ, जैसे गो टू पोर्टफोलियो तो पूरा पोर्टफोलियो का ब्रेकअप आ जाएगा। एज़ अ फैमिली मेंबर पहले मैं ओवरऑल देख रहा हूँ और फिर मैं अंदर जा रहा हूँ, फिर फैमिली के डिटेल्स में जा सकता हूँ। तो जैसे अब एक-एक पोलियो का डिटेल, उसमें जैसे मुझे कैटेगराइज़ ब्रेकअप आ गया और अगर मुझे वो चाहिए ईच स्लाइस चाहिए तो ईच स्लाइस का अलग ब्रेकअप है कि किसमें क्या है, ऐसे और फिर ओवरऑल फिर मैं सॉर्ट कर सकता हूँ। फिर मैं उनके सारे ट्रांज़ैक्शन देख सकता हूँ कि क्या-क्या ट्रांज़ैक्शन हुए, क्या-क्या जैसे सारे स्विच इन ट्रांज़ैक्शंस हैं। तो हुआ, फिर ऐसा ऐसे करके एक-एक प्रोडक्ट और एक-एक फीचर का पूरा इन डेप्थ ऐसे स्टडी कर सकता हूँ, पूरा यहाँ डिटेल देख सकता हूँ उसके पूरे। ये सारे फीचर्स हो गए। दूसरे इसमें क्या इंटरेस्टिंग है, हर प्रोडक्ट अपने आप अवेलेबल, जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लिक्विड लोन्स, स्टॉक्स, गोल्ड बॉन्ड, सारे प्रोडक्ट हैं। जिस प्रोडक्ट के बारे में मुझे चाहिए डिटेल, उस प्रोडक्ट में जाके देख सकता हूँ। जब मैं यूज़ कर रहा हूँ, मान लो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैं नहीं डील करना चाहता, तो वो मैं आप रिक्वेस्ट भेजो, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट वहाँ से हट जाएगा। वो फिर ये बॉक्स ही नहीं दिखेगा उस प्रोडक्ट से। ये पूरा मॉड्यूलर है, कॉन्फ़िगरेबल है, हर तरह के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़ इनबिल्ट हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, प्लानिंग के, कैलकुलेटर्स के, ये सब इनबिल्ट हैं, जो बहुत पॉपुलर हैं। कई सारे हमारे टूल बहुत पॉपुलर लोग यूज़ करते हैं। हर तरह का कैलकुलेटर्स है, लम्प सम, मैरिज, वेकेशन, कैलकुलेटर, रिटायरमेंट,
बहुत लोग रिटायरमेंट कैलकुलेटर बहुत यूज करते हैं कि आपकी करंट एज इतनी, रिटायरमेंट है, लाइफ एक्सपेंस इतनी, मंथली एक्सपेंस ये एक्सपेंस रेशियो ये सब है, फाइनली आपका ओवरऑल प्लान क्या है, ये पूरा ऐसा कैलकुलेट करके ऐसा पूरा डिटेल में सिर्फ निकाल के दे देता है। ऐसे बहुत सारे यूनिक फीचर्स और चीजें इसके अंदर इनबिल्ट है जो हमने बनाई हुई है। और ये बास्केट्स वो थे जो मैंने वहां पर सेव किए, वो सारे बास्केट्स यहाँ। अब ये जैसे ये थीम है, ये आप देख सकते हो, जैसे ये ब्लैक में थीम है, ये इस कलर में थीम है। अभी अगर यही सब भी कन्फिगरेबल है, अगर मुझे ये थीम नहीं जमी और मुझे लगता है कि मेरे मेरे कस्टमर, तो मैं यहाँ जाके जैसे अगर व्हाइट थीम कर दूं और सेव कर दूं, तो ये जो ऐप है, अब मैं वापस आके देखो, जो अभी ब्लैक थीम में जो आपको दिख रहा है जैसे ये ब्लैक है, अब मैं इससे बाहर जाता हूँ, ऐप को मैं ऐसे क्लोज कर देता हूँ, वापस ऐप स्टार्ट करता हूँ, अंदर जाता हूँ, ऐप वाइट थीम में आ गई। अब देखो कि वही प्रोडक्ट है, वही सर्विसेज, लेकिन सारी वाइट थीम है। अब वो उस कलर कॉम्बिनेशंस में है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो सारी थीम्स और कलर्स और सारी चीजें वाइट थीम में बनी। तो ये सारा आपकी सब कॉन्फ़िगरेशन में आपकी चॉइसेस है, किसी पर डिपेंडेंसी नहीं है। हम फीचर्स और ये सब बना के देते रहते हैं, चूज आप कर लेते हो जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको मैनेज करना है। स्टॉक का पोर्टफोलियो भी इसके अंदर पूरा मैनेज हो सकता है। और कहीं आपका ब्रोकर कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं आपको डिमांड यहीं खोलना। अगर आपका ब्रोकर कहीं और का भी, तो भी यहाँ पर एनएसडीएल सीडीएसएल की फाइल अपलोड कीजिए, पूरा स्टॉक्स रिपोर्ट यहाँ पर लाइव आ जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी यूनिक चीजें बनी हुई हैं जो ऐप के अंदर है, जो आप देख रहे हो, और ऐसे आप इसके ऊपर कर सकते हैं। तो ये हो गया ऐप का। और इसके अलावा मैंने बेसिकली सारे पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर लिए, तो वापस मैं प्रेजेंटेशन में जाता हूँ जहाँ पर आप प्रेजेंटेशन में देख रहे थे। तो बेसिकली ये हम आपने देखा, ये प्रोडक्ट फीचर्स के कारण हमको हाल में अवार्ड भी मिला। ये उस अवार्ड का क्या बोलते हैं, डिस्प्ले है। हम लोग को वन ऑफ द बेस्ट फिनटेक अवार्ड मिला 2021 में। ये CIO ने रिकॉग्नाइज किया कि एंड फीचर्स आपने ऑलरेडी देख लिया। ये सब ऑलरेडी हमारे वेबसाइट के ऊपर भी इसका डिटेल डेमो और फीचर्स, ये सब डिफरेंट लुक्स हैं जो अलग अलग थीम, कलर्स और उसके साथ बनते हैं। और एक से क्या, हमने आज की डेट में इतने लोगों के कस्टम ऐप बनाए हुए हैं। मैं आपको सीधा जाके वो पॉइंट दिखाता हूँ कि आप देखोगे इतने इतने लोगों के इतने सारे ऐप्स हमारे थ्रू चल रहे हैं। ये देखिए, ये सारे ऐप्स, ये सब अलग अलग लुक्स और फील के हैं, सब अलग अलग लोगों के हैं, ये सारे यूज कर रहे हैं। ये सारे ऐप्स आज पूरे इंडिया के ऐसे, ये तो बस एक लिस्ट, मतलब ये तो लिस्ट बहुत लंबी है, खत्म ही नहीं होगी, लंबी चलती जाएगी। तो ऐसे सबके ऐप्स इस प्लेटफॉर्म के ऊपर चल रही है। सबके इंडिपेंडेंट ऐप, आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, चाहे वो नॉर्थ इंडियन ऐप है, चाहे वो साउथ इंडियन ऐप है, लैंग्वेज वाला है, मतलब नाम से यूजर है, लेकिन ये पूरे इंडिया में यूज हो रहा है और यूज हो रहा है। और ये सारे इंडिविजुअल ऐप्स है, ये सब फंड्स मैजिक, वेलबींग इन्वेस्टमेंट, ऐसे सर्च कर सकते हो। ऐसे टाइप करो गूगल स्टोर पर और ये सर्च कर सकते हो। ऐसे ये जस्ट एक स्मॉल लिस्ट है, और हर ऐप का फीचर एकदम अलग यूनिक तरीके से बना हुआ है। जैसे ये कल्पत्रु इन्वेस्टमेंट ऐप है, या ये आपका ट्रू पैसा ऐप है, और ये किसी का वेल्दी मॉन्क ऐप है, और ये किसी का RS एसोसिएट ऐप है, ये किसी का इनवीसीड ऐप है। तो अलग अलग यूनिक थीम्स, डिजाइन, और ये सब से ये बालाजी इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे लोगों ने अपने अपने हिसाब से थीम से और कलर कॉम्बिनेशन से अलग अलग चीजें बनाई। मैं तो बस आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूँ। रोज हमारे यहाँ ऐप बनते हैं और लॉन्च होते हैं। ये बस सारी स्क्रीन वही सब आप देख रहे हैं कि ऐप बन रहा है, लॉन्च हो रहा है, और एक से एक वो ऐप देखने में एकदम ऐसा लगता है ऐप स्टोर में एक ऐसा बन जाता है आपका खुद का ऐप। तो ये सारे फीचर्स और सब सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल हैं जो आप ऐप लेंगे। तो ये काइंड ऑफ सारे प्रोडक्ट और फीचर्स हो गए जो आपको बताने थे। और ये कुछ ऐसी खास बात है जो मैं वापस आइटरेट कर रहा हूँ, जो कहीं आपको नहीं मिलती। जैसे वो प्री फिल्ड चेंज ऑफ ARN, वो ट्रैक करना, स्विच करना, ऑटो जनरेट कैश कर देना, और वो जो अपने आप कस्टमर के पास फाइल में चल जाए, आपको कहीं और जाके कहीं नहीं क्लिक करना, यहीं से जनरेट हो जाता है। डायरेक्ट प्लान यहाँ से रिडीम कर लेना, ये सारी यूनिक चीजें आपको फंड एक्सपर्ट के अंदर ही मिलेंगी। और ऐसे और कैम्प्स और KFinTech में डायरेक्ट आप SOA डाउनलोड कर सकते हो। इंश्योरेंस मल्टीपल कंपनी से अपने ऐप के अंदर से बाई कर सकते हो। ये सारे रियल टाइम में आप उनको कस्टमर से शेयर कर सकते हो, कस्टमर को ही चॉइसेस दे सकते हो कौन सी पॉलिसीज को इंटरेस्ट है। ऐप के थीम, कलर, एडिट, मैसेजेस आप इंस्टेंटली कस्टम एडिट कर सकते हो।
और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा यूनिक फीचर है, वो स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप हम क्रिएट करते हैं हर IFA के लिए, जिसके थ्रू उसका RM उससे कनेक्टेड रहता है और रियल टाइम उससे इंटरेक्शन करता है। कई बार आपको सरप्राइज होगा, लेट नाइट उसको आंसर मिल जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग मिल जाता है, संडे वीकेंड हॉलीडेज में मिल जाते हैं। तो आप हमेशा कनेक्टेड रहते हो, आपको ये टेंशन नहीं रहता कि अब ये सॉल्व मुझे करना है, मुझे मंडे को जाके किसी से बात करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें, आपकी बहुत सारी चीजें इन द फ्लाई सॉल्व हो जाती है। हमारे पास भी टिकट वाला सिस्टम है और सब है, लेकिन आज की डेट में कोई यूज नहीं करता। सारे IFA इतने खुश है उस सिस्टम से, उस सर्विस और सपोर्ट से जो उसको पर्सनल मिलती है उस स्पेशल ग्रुप से, जो उनका हर का अलग स्पेशल ग्रुप है। आप किसी और से, तो आपका अपना प्राइवेसी है और वो मेंटेन्ड है और वैसे ही है, सबका किसी के साथ कुछ भी नहीं। तो ये सब बहुत यूनिक है। रियल टाइम सपोर्ट जो हमने इंट्रोड्यूस किया, ये इंडिया में वन ऑफ द यूनिक, ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलता है। अब आपको साइन अप करने के लिए बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा है। ये सीधा fundexpertfintech.com में जाइए, वहां पर साइन अप पे क्लिक कीजिए, डिटेल एंटर कीजिए, या फिर हमको ईमेल कर दीजिए connect@fundexpert.in में, या 8310791241 है, ये मेरा खुद का मोबाइल नंबर है। आप इस पर अपना व्हाट्सएप कर दीजिए, नेम IRN, और या फिर हम IVR में कॉल कर लीजिए, कोई ना कोई हमारी टीम से आपको मिल जाएगा जो आपसे बात करे किसी में। तो ये आपका बहुत सिंपल तरीका है ऑनबोर्ड करने का, आने का। और ऑब्वियसली अब मैं आपको इसकी प्राइसिंग बता देता हूँ, और स्पेशल जो आज है आप लोग सबके लिए, जो आज ही के लिए अवेलेबल होगा, जो भी साइन अप करेंगे उस वेबसाइट की लिंक के थ्रू, वो वेबसाइट लिंक भी वापस डाल देता हूँ चैट में। तो हमारा प्राइसिंग बहुत सिंपल है। अगर आप अपना 5000 रुपीज है बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर, फंड एक्सपर्ट ऐप, फंड एक्सपर्ट वेब का, 10,000 रुपीज है अपना खुद का ऐप अगर आप लेते हो एक्स्ट्रा, तो टोटल ऐसे 15,000 होता है। लेकिन हमारा जो स्पेशल ऑफर है वो दोनों मिला के आप 10,000 रुपीज में ही, हम बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर का सेपरेट चार्ज करेंगे, आप सिर्फ 10,000 रुपीज दो, आपका खुद का सॉफ्टवेयर के साथ बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर भी ये मतलब पूरा इंटीग्रेटेड मिल जाएगा। तो खुद का आपका एंड्रॉइड ऐप आ जाएगा, सिर्फ 10,000 प्लस GST, सब पर GST एक्स्ट्रा है। सेकेंड सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज कि अगर आप कोई एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो ये आप पेमेंट आज करो, हम ऐप आज ही लाइव कर देंगे, मतलब इन ड्यू कोर्स, और आपको मिल जाएगा, आप यूज करते रहो। आपका रिन्यूअल लेकिन हम काउंट करेंगे सब्सक्रिप्शन पीरियड जब आपका पिछला सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो फैसिलिटी है, ये सिर्फ स्कीफा एसोसिएशन के मेंबर्स के लिए ही अवेलेबल है, बाहर नहीं अवेलेबल है। कोई सेपरेटली आके मुझसे मांगेगा तो ये वाला एक्सटेंशन जो मैं आपको दे रहा हूं, ये बाहर वाले लोग को अवेलेबल नहीं होगा। ये प्लीज जो आज साइन अप करेंगे, और वो भी क्योंकि हमारे पास मैनेज करने के लिए बहुत कम लोग हैं और हम नहीं ट्रैक कर पाएंगे, इसलिए आप प्लीज जिनको भी इंटरेस्ट है, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जाके साइन अप कर लीजिए। मैं यहाँ पर आपको लिंक भेजता हूँ, आप इसको तुरंत आज साइन अप कर लीजिए, और फिर आप उसके थ्रू 1-to-1 डेमो भी देख सकते हो, आपका ऑनबोर्डिंग करके देख लेगा, आप यूज करके आप सब आपको सेटअप करके दे देगा। लेकिन जो लोग आज साइन अप करेंगे और एक वीक के अंदर पेमेंट कर लेंगे, उनके लिए ये वाला फैसिलिटी स्पेशल अवेलेबल होगा। तो अब काइंड ऑफ मैं अपना स्क्रीन स्टॉप करता हूँ और आपके अब पोटेंशियल आपको देता हूँ। अब एक सेकेंड, तो अब मैं आपको आपने सारे फीचर्स और सर्विसेज देख ही लिए। अब मैं आपको एक सेकेंड, मैं चैट में जाता हूँ और आपको सारे फीचर, अब आपको मैं वो साइन अप लिंक देता हूँ जिससे आप ये साइन अप कर सकते हैं, और ये सारे एडवांटेज आपको मिल जाएंगे। इसके बाद एक सेकेंड में आपसे कनेक्ट करता हूँ। हाँ, अब मैं कुछ क्वेश्चन ले लूंगा, लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो एक सेकेंड में पहले मैं सबको लिंक आप मैं लिख रहा हूँ, मैं अपनी कंपनी वेबसाइट की लिंक दे रहा हूँ जिसके में साइन अप है। प्लीज जाके एक ऊपर में राइट साइड में साइन अप है, सिर्फ आपको नाम, मोबाइल, ईमेल, ARN UIN एंटर करना है। आप इसमें जाके तुरंत साइन अप कर लीजिए, और जो भी फीचर है, देखिए मैंने जयेश जी मैंने लिंक डाल दिया ग्रुप में, ठीक है। तो आप इस पर साइन अप कीजिए, और साइन अप करने के बाद आपको एक मेल कंफर्मेशन जाएगा, उस मेल के रिस्पॉन्स में आप लिख दीजिएगा कि आप स्कीफा मेंबर है, और फिर मैं कंफर्मेशन लेके आपको वो ये सब दे दूंगा।
अब मैं कुछ क्वेश्चंस चैट में, तो मेरे पास एक दो क्वेश्चन है। तो प्राइसिंग मैंने आप वापस आपको बताई, वापस रिपीट कर दो। 5000 प्लस जीएसटी है नॉर्मल वाला, और सिर्फ फंड एक्सपर्ट ऐप, वेब, आपको डेमो, जैसे demo.fundexpert.net है, वैसे आपको कुछ आपके नाम, आपका जो भी नाम है .fundexpert.net मिल जाएगा, और फंड एक्सपर्ट का iOS ऐप मिल जाएगा। सेकंड ऑप्शन था 10,000 रुपीज प्लस जीएसटी वाला, जिसमें आपको अपने नाम का ऐप भी मिल जाएगा। जैसे आपने देखा ना दुनिया भर के मैंने ऐप की लिस्ट दिखाई, ऐसे आपको आपके नाम का एक एंड्रॉइड पर ऐप मिल जाएगा जो आप सबको दे सकते हो। इसके साथ स्टैंडर्ड जो वेब वाला, जो वही आपका ऐप नेम .fundexpert.net का आपको वेब भी साथ में इसके साथ इंटरफेस मिल जाएगा। iOS के लिए फंड एक्सपर्ट iOS ऐप यूज कर सकते हैं। तो वो सेकंड ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। और जो कि मैंने बोला स्पेशल प्राइसिंग चल रही है अभी ये संक्रांति के लिए, 10,000 प्लस जीएसटी में मिल जाएगा, प्लस वो स्पेशल ऑफर जो मैंने बोला कि जो भी आपका सॉफ्टवेयर का रिन्यूअल है वहां से। सेकंड है कि आपका एक क्वेश्चन मुझे ये मिला, तो ये प्राइसिंग मेरे ख्याल से मैंने वापस दे दी। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, फिर मैं अनम्यूट कर लेता हूँ, फिर लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सॉफ्टवेयर कंपैटिबल है वेल्थ मैजिक के साथ? तो हाँ बिल्कुल, वेल्थ मैजिक एक सेपरेट बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर है जो आप यूज कर रहे हो, आप उसको कंटिन्यू, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर को जो डेटा चाहिए वो भी आरटीएस आता है, और वेल्थ मैजिक को भी डेटा उससे जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर वेल्थ मैजिक के साथ आप यूज कर सकते हो। वेल्थ मैजिक को आप अपनी रिपोर्टिंग, बैक ऑफिस जो भी आप यूज कर रहे हो कंटिन्यू कर सकते हो, और ये सॉफ्टवेयर को आप फ्रंट एंड, ट्रांजैक्शन, एक्विजिशन उसके लिए यूज कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर बहुत लोग यूज करते हैं दूसरे कोई सॉफ्टवेयर के साथ। हाँ, रिन्यूअल चार्जेस हमारे सेम है, क्योंकि एकदम स्पेशल ऑफर मिला हुआ है, इसलिए रिन्यूअल चार्जेस सेम रहेंगे। आपको रिन्यूअल चार्जेस हाइक नहीं होंगे। ठीक है। मल्टीपल एआरएन के लिए एक स्पेशल क्वेश्चन आया है कि क्या चार्जेस रहेंगे। तो एक्स्ट्रा एआरएन का हम डेटा, जो हमको एक्स्ट्रा एआरएन का एक्स्ट्रा डेटा सिंक करना पड़ता है, उसका हम साल का 2500 पर एनम देते हैं। तो आपको काइंड ऑफ प्राइसिंग क्लियर हो गई, ये क्लियर हो गया। अब एक सेकंड, चैट में अब कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं डायरेक्टली अनम्यूट करके काइंड ऑफ वो ले लेता हूँ, आपको सबको स्टॉप कर देता हूँ। आपने नंबर्स तो नोट कर ही लिए, वापस मैं लिख देता हूँ अगर इन्होंने नहीं देखा। एक कहाँ साइन अप करना है वो दे दिया, एक आपको व्हाट्सअप करके साइन अप करना है, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। मैंने व्हाट्सअप नंबर भी डाल दिया है, ये नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, अपना नाम, एआरएन बताइए, आज का इवेंट के बारे में लिखिए, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप इवेंट से रिलेटेड है। हाँ, अब जैसे अतिन सेठ जी का क्वेश्चन है कि क्या थर्ड पार्टी का डेटा हम अपलोड कर सकते हैं, तो ये यूटिलिटी अभी हम बना रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास अभी कोई फॉर्मेट्स अवेलेबल नहीं थे। अभी कुछ आए थे जो एनजीओ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और उनका डेटा अपलोड कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल एक हमारे पास ऑलरेडी यूटिलिटी है कैश अपलोड। कैश अपलोड के कारण क्या होता है, उसके कस्टमर का सारा डेटा अपलोड हो जाता है अपने आप। तो एनजीओ प्रोडेंट की यूटिलिटीज इन प्रोसेस है, क्योंकि हम उनके फाइल्स लोगों से ले रहे हैं। जो एनजीओ प्रोडेंट मेंबर है वही हमको फाइल दे पाएंगे। जब वो फाइल मिलेगी तो फिर हम उसके हिसाब से एक यूटिलिटी बना देंगे, तो आप उस फाइल को वहां से यहाँ अपलोड कर सकते हो। लेकिन उससे बेटर होगा कि आप कैश करो, डे 1 से कस्टमर का जो भी ट्रांजेक्शन है पूरा नीट एंड क्लीन आ जाए। कई बार अगर उनका डेटा कोई भी डेटा और दूसरा भी डेटा आ जाएगा जो ऐसे आपको नहीं मिल रहा, मतलब एनजीओ प्रोडेंट के अलावा भी उनके कस्टमर के डायरेक्ट ट्रांजेक्शन हो सकते हैं कहीं और, तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा नीट और क्लीन है, और कस्टमर के लिए भी बहुत ईजी है, क्योंकि एक फाइल से उसका काम हो जाता है, और वो एकदम आरटीएस आता है तो परफेक्ट है। तो और सेकंड है वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। कल को एनजीओ प्रोडेंट का कोई डेटा नहीं मिले या इनकम्प्लीट या कोई भी हो, तो यहाँ से आपको डेटा 100% कस्टमर का मिल जाता है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होता, क्योंकि आरटीएस है। तो ये यूटिलिटी बहुत यूज कर रहे हैं हमारे बहुत सारे ऐसे आईएफएस हैं जो एनजीओ प्रूडेंट में उनका एक आरएन या एक अकाउंट है या कहीं का है, उसको वो यहाँ मर्ज करके यूज करके कस्टमर से काम कर। आपने चैट में, हाँ तो आप मैं एक ईमेल आईडी लिखता हूँ जिनको ईमेल से कुछ डाउट पूछना है, क्योंकि जैसे संदीप गांधी जी को कुछ ईमेल चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए मुझे अपना ये ईमेल आईडी, क्योंकि आप यहाँ चैट में लिखेंगे इतने सारे में मिस हो जाएगा। मैंने एक ईमेल भी लिख दिया है, इनको ईमेल से अपना इंक्वायरी करना तो ईमेल से कर लीजिए। व्हाट्सअप नंबर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ, उसमें कर सकते हैं। अच्छा, आपको प्रेजेंटेशन का लास्ट कोई पॉइंट नहीं मिला तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं ये प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड हो रहा है मैं भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको सबको दे दिया है व्हाट्सएप नंबर, आपको ईमेल भी दे दिया है, व्हाट्सएप भी दे दिया। आप इस पर ईमेल कर दीजिए, और ये देखिए लास्ट स्क्रीन भी दिख रही होगी इसमें, ये सारे कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हमारा आईवीआर नंबर भी है, तो इस पर आप कीजिए और हम आपको बात करें। अब मैंने चैट में सारे क्वेश्चंस हो गए। अब
अब बेसिकली मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हो गया, तो मैं अपना स्टॉप करता हूँ शेयर। और आप आनंद जी आप अपने आप को म्यूट कर सकते हो, अब मैंने अलाउ कर दिया। हाँ, एक क्वेश्चन और था, किसी ने पूछा था इंश्योरेंस पॉलिसी एंटर कर सकते हैं। हाँ, आप एंटर करके ट्रैक कर सकते हैं, वो फीचर मैंने दिखाया नहीं, लेकिन पूरा आप उसके सारे इंश्योरेंस का डेटा एंटर करके इवन पॉलिसी फाइल पीडीएफ भी अपलोड करके पूरा ट्रैक कर सकते हैं। अतिन छेद जी, आपका क्वेश्चन था सपोर्ट में आपका कैसा है? इंडिया का बेस्ट सपोर्ट है, मैं चैलेंज करता हूँ उस चीज को। अगर कोई प्रूव करके दिखा दे कि हमारा सपोर्ट से बेटर सपोर्ट मिलता है, उतना अच्छा है। जितनी अच्छी मेरी IIT IIM की डिग्री उतना अच्छा और उससे ज्यादा क्या कंपेयर करूँ, कैसे प्रूव करूँ कैसे अच्छा? क्योंकि आप वो या फिर रेटिंग देख लीजिए। हाँ, फ्यूचर में भी सेम रहेगा। हाँ हाँ, 100% सेम रहेगा। हम लोगों को कोई ऑल्टर करने का कोई आइडिया नहीं है, हम क्यों ऑल्टर करेंगे? बेटर होंगे, कम क्यों होंगे? ठीक है, आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन है क्या सर? आप लोग पूछ सकते हैं, मेंबर लोग से। यार મિત્રો કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો ચેટમાં પૂછી શકશે, અથવા તો પોતાનો હેન્ડ રેઝ કરીને પણ પૂછી શકશે। अच्छा, किन्हीं को एक मैसेज आ रहा है शायद कि आपका ऑलरेडी बीएससी में रजिस्टर्ड है या आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, ऐसा कुछ आ रहा है। तो ऐसे केस में हो सकता है कि कभी पास्ट में आपका किसी ने आपका ARN डाल के किसी ने रजिस्टर कर दिया हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको अपना ARN नंबर और मैं आपको गेट बैक कर लूंगा। जो ऑनलाइन अभी रजिस्टर कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं कोई कारण से, वो व्हाट्सअप कीजिए ना, मैंने नंबर दिया हुआ। हार्दिक विकारिया जी, आपके लिए भाई। और किन्हीं को कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं चैट वाले तो सारे पूछ ले रहा हूँ। वैसे मैंने अनम्यूट का भी ऑप्शन दे रखा है, अगर किन्हीं को चाहिए तो ऑर्डरली फैशन में अगर आप कर पाए तो, या आनंद जी का कुछ और आइडिया हो कैसे और करना, या जयेश जी कुछ और सजेस्ट करे तो कैसे। थैंक यू अनुराग जी, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन सबको दी। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म का डिटेल सब हमारे MFDs को है। મિત્રો કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો હજી પણ ચેટમાં ટાઈપ કરીને પૂછી શકશો, અથવા તો હેન્ડ રેઝ કરીને પૂછી શકશો। અને એ સિવાય પણ એમના મોબાઈલ નંબર, ઈમેલ એડ્રેસ બંને આપણી પાસે છે, તો તમે ડાયરેક્ટ એમને પણ ગમે ત્યારે મેલ અને WhatsApp કરીને પણ પૂછી શકશો। आप मुझसे डायरेक्ट मेल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, जैसे मेरा नंबर है ही आप लोग के पास, तो जो भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके मन में है आप पूछ सकते हैं। हितेश जी का क्वेश्चन था, आपने पहले ऐसे कुछ लोगों को फ्री क्यों दिया? क्योंकि हमको प्रूव करना था कि ये सॉफ्टवेयर से रियल में वो पावर आती है, इसलिए हमने स्टार्टिंग में फ्री दिया था। फिर बाद में हमने इसको इन्फॉर्म कर दिया कि अभी पेड सॉफ्टवेयर है, नहीं तो लोग को नए सॉफ्टवेयर ट्राई करने के लिए वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो इसलिए हमने। अब तो हमारा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, इंडिया का हाईएस्ट रेटेड है। तो आई थिंक क्वेश्चन तो अभी नहीं है, या तो और जैसा Okay. आपने बोला जयेश जी, वो मेरे हाँ को डायरेक्ट मैसेज कर लेंगे मेरे हाँ नंबर। મિત્રો કોઈને ક્વેશ્ચન ન હોય તો હવે હું વોટ ઓફ સિંક માટે આપણા જોઈન્ટ સેક્રેટરી રાજકોટથી જોડાયેલા જિગ્નેશભાઈ ગોવાણીને વિનંતી કરીશ કે તેઓ વોટ ઓફ થેન્ક કરશે। સૌપ્રથમ આભાર જયેશભાઈ પતાણી કે તમે મને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી। मैं हिंदी में बात करूंगा क्योंकि सभी समझ पाए। जैसे हमारा साबू सर जो कि कंपनी के CEO है, फिर भी इतने लो लेवल से हमारे साथ जुड़ के पूरा माहिती उसका एक्सप्लेनेशन किया। और उनका मैंने भी BSc के साथ टाइप जब था तभी मैंने भी लिया था, मेरा ऑलरेडी चल रहा है उसके साथ में। उनका जो सपोर्ट का बात कर रहे हैं वो रियली ऐसा है, वो उसमें फुल्ली देते हैं। जैसे व्हाट्सएप में ग्रुप बनाते हैं उसमें खुद रहते हैं, एक RM रहता है और एक अपना नंबर रहता है, तीनों का चलता है साथ में क्वेश्चन आंसर, और फुल्ली सपोर्ट करते हैं। थैंक हम करेंगे पूरा अपना टीम का, पूरा हमारा स्कीफा परिवार जो जिनको सॉफ्टवेयर की जानकारी लिए, टेक्निकली अपडेशन के लिए साथ में रहे। जयेश भाई जिन्होंने से मास्टर ऑफ सेरेमनी संभाला, हमारा आनंद सर जिन्होंने साबू सर का इंट्रोडक्शन करवाया और वेलकम किया राजेश भाई ने, और जो हमको पूरी टीम
स्कीफा है जो पूरा हेल्प कर रहा है ये ऑर्गेनाइजेशन सब करने में, उनका भी हम ये तक पे थैंक यू बोलेंगे। और जिन्होंने क्वेश्चन आंसर किया बैक एंड में और इंटरेक्शन ज्यादा बढ़ाया जिसके कारण सभी को पूरा इंफॉर्मेशन मिल पाया, उसके लिए जिन्होंने क्वेश्चन आंसर किया वही सभी स्कीफा मेंबर्स का मैं थैंक यू बोलूंगा। और सभी स्कीफा मेंबर्स जो ज्वाइन हुए और उन्होंने अपना अपग्रेडेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं उसको भी मैं थैंक यू बोलूंगा। और ओवर टू जयेश भाई। थैंक यू जिग्नेश भाई, આપણે वोट ऑफ थैंक्स કર્યું। अनुराग जी वंस अगेन आपका खूब खूब आभार। और मैं आनंद भाई को प्रपोज करूंगा नेशनल एंथम के लिए। थैंक यू सर। एक सेकंड, जस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेशनल एंथम, 1 मिनट। ओके ओके। अनुराग जी, कैन यू अलाउ अदर्स टू स्क्रीन शेयर? सर आवाज नहीं आ रहा है। सॉरी, मैं आवाज म्यूट हो गई थी। मैंने किनको इन स्क्रीन शेयर कर दूं, किनको अलाउ? सर मुझको कर दीजिए आप प्लीज। ओके ओके, श्योर श्योर। यहाँ पे